آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کا حق کرنے والوں پر اور ان کو اپنے جیسا سمجھنے والوں پر۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم جس پروگرام کے تحت آپ کی خدمت میں ہیں، اس کا نام ہے 14,000 اسپانسر، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوتا ہے اور اس کا ٹائم پاکستانی ٹائم، انڈین ٹائم اور عراقی ٹائم کے مطابق۔ عراقی ٹائم رات میں اس کا وقت 8 سے 10 ہو جاتا ہے، پاکستانی ٹائم رات میں 10 سے 12 کے دوران ہوتا ہے، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران، اور بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے دوران، اور نیو یارک کے ٹائم کے مطابق رات میں 12 بجے سے لے کر 2 بجے کے دوران، اور اسی طریقے سے لندن کے ٹائم کے مطابق شام میں 5 سے 7 بجے کے دوران۔ یہ 2 گھنٹے کا دورانیے کا پروگرام شبانہ آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کی گھڑیاں میسر کرتا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بدھ کا دن 4 معصومین علیہ السلام میں سے 4 ائمہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کا دن ان 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 25 مارچ 2026 عیسوی ہے، 5 شوال 1447 ہجری قمری ہے۔ آپ سب کو یہ ٹائم پروگرام کا رات میں اتنے ممالک کے حوالے سے بتانے کا سبب یہ تھا کہ دن کے ٹائم میں یہ جو اس وقت چل رہا ہے پروگرام، یہ لائیو ہے۔ نیکسٹ ڈے میں 3 ٹائمز یہ دوبارہ چلایا جاتا ہے، یعنی ریکارڈڈ پروگرام کو ری پلے کیا جاتا ہے، جو پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح کا وقت اگر آپ لگائیں گے تو 5 سے 7 بن جائیں گے، 4 سے 6 بن جائیں گے، انڈین ٹائم 4:30 سے 6:30 بن جائیں گے، اور ظہر سے پہلے پاکستانی ٹائم اگر آپ دیکھیں گے تو 10:30 سے 11:30، اور انڈین ٹائم 10:30 سے 12:30، اور انڈین ٹائم اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 11 بجے سے لے کر 1 بجے ہو جائے گا ظہر سے پہلے، اور شام کے وقت میں پاکستانی ٹائم 4 سے 6 اور انڈین ٹائم 4:30 سے 6:30 کے دوران یہ 3 ٹائم ری پلے کیا جائے گا پروگرام، اور آپ اس پر ری پلے ٹائمنگ میں دیکھیں گے اور کال کریں گے تو کال تو چینل کا نمبر ظاہری بات ہے واٹس ایپ بھی آن رہتے آئے گی، لیکن پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ پروگرام میں اپنا سلام پہنچانا چاہتے ہیں تو رات کے وقت میں جو یہ وقت ہے، اس وقت میں عراقی پاکستانی ٹائم، انڈین ٹائم کو اگر آپ اندازہ کر سکے ہیں اور نوٹ کر سکے ہیں تو اس ٹائم میں آپ کال کریں گے تو آپ کی کال لائیو پروگرام میں شامل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ہمارا پروگرام کربلا معلیٰ سے روزانہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے، لائیو سٹریم ہوتی ہے اس کی اس وقت میں، اور ہم مولا کی بارگاہ سے آپ سب کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات آپ سب کو جلد کربلا معلیٰ آنے کا شرف عطا فرمائے۔ زمانے کے تغیرات و تبدلات کے اندر مشکلات جو آتی ہیں، شاید سبب یہی ہے کہ ہم اس محبت کو مزید بڑھائیں اور یہ جوش ولا
اور जोश अक़ीदत हमारा मज़ीद जोश पकड़ जाए, ठाठे मारने लगे। इस वजह से शायद ऐसा होता है हर चंद साल बाद कुछ ऐसी कैफियत आती है कि करबला की ज़ियारत के अंदर थोड़ा सा रखना पैदा हो जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, कोई चीज़ हायल हो जाती है, जिसकी वजह से मोमिनीन के दिल धड़कने लगते हैं कि अब आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। बहरहाल इन सब पसोपेश के दरमियान, मुश्किलात व जबर के दरमियान, जुल्म व इस्तिबदाद के दरमियान करबला मौला का चराग रोशन है और ये चराग हिदायत है, और हिदायत को क़यामत तक मोमिनीन के दिलों में जगह पकड़ने की ज़रूरत है और मोमिनीन को इसकी ज़रूरत है। लिहाजा हिदायत का चराग अगर बुझ जाए तो यकीनन मोमिनीन की तलब ख़त्म या उनको तलब मुकम्मल न हो सकेगी, ना पूरी हो सकेगी। अल्लाह ताला हिदायत करना चाहता है, लिहाजा हिदायत का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। लिहाजा करबला का चराग हमेशा रोशन रहेगा। आप सबसे इस्तदआ है कि इस प्रोग्राम में कॉल करें। तीनों व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो अप हो रहे हैं और इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बहरहाल मोमिनीन दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर कॉल करते हैं, सलाम भेजते हैं मौला पर। ये प्रोग्राम जिसका असल हदफ जो है वो मोमिनीन को करबला से वसल करना है, और हदफ सानवी जिसके तहत इस प्रोग्राम को 2 घंटे का करार दिया गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को जो क्राइसिस दरपेश है, जो माली मुश्किलात दरपेश हैं, जिन असबाब से ये चैनल तरक्की पाता है, वो असबाब यकीनन दुनियावी एतबार से माली भी हो सकते हैं, तो उनमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मोहम्मद ज़मान साहब बल्तिस्तान से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब मोहम्मद ज़मान साहब, अस्सलामु अलैकुम। जनाब मोहम्मद ज़मान साहब, आपकी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर आप समाअत फरमा रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम। हाँ, बहरहाल कॉल में कोई खलल आ गया है जिसकी वजह से जवाब नहीं आ रहा। बहरहाल जैसे ही कॉल सेट हो जाती है दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। बहरहाल मोमिनीन आप सब इसमें सलाम पेश कर सकते हैं, मौला से अपनी इज़हार मोहब्बत कर सकते हैं, तवस्सुल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से आपके लिए आसान रहेगा, वरना अगर आप कॉल करना चाहें और अफोर्डेबल है तो आप कॉल भी कर सकते हैं प्रोग्राम में और मौला से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। ये एक जिस तरीके से हम प्रोग्राम कहते हैं ना, तो एक किस्म का कोई दुनियावी लफ्ज़ हमारे जहन में आने के सबब से दुनियावी एतबार हमारे जहन में आ जाता है। असल यही है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इश्क और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क का इजहार होता है। यहाँ पर उसका अमली नमूना आप कॉल करके मौला की बारगाह में पेश करते हैं और मोमिनीन शरीक हो जाते हैं। काफ़ी सारे मोमिनीन इब्तिदाअन थोड़ा सा शर्माते हैं, घबराते हैं कि हम किस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि यूजुअल नहीं है। नॉर्मली हम टेलीफोन्स वगैरह पर इबादत या तवस्सुल करने के आदी नहीं हैं। जब उनके लिए फ़र्स्ट टाइम ये कैफियत मैसर होती है तो वो थोड़ा सा शीशोपंज का शिकार हो जाते हैं, और ख़ुसूसन उस वक्त में जब मोमिनीन से चैनल से मुताल्लिका नज़र में शरीक होने का कहा जाता है, तो थोड़ा मोमिनीन को सोचने का मौका होता है। बहरहाल आप सोचें, ज़रूर सोचें, इसमें आप सोचा भी करें, लेकिन इतना ना सोचें कि आपकी सोच आपके लिए घबराहट, परेशानी या अल्फाजों की बेतरतीबी, बेरब्तगी का सबब बने। आप एक कम से कम जो आपके लिए नॉर्मली अफोर्डेबल है उसका आप इजहार फ़ौरन भी कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टेलीविज़न का प्रोग्राम है करबला से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब अपनी जमा जोखड़ी को आपने यहीं पर ही दे देना है। जो आपके इख्तियार में है हस्ब तौफीक सादा से अंदाज में, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप इजहार कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए भी बर्डन नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट अगर आप सोचें कि आपके मज़ीद बेहतर अंदाज में दे सकते हैं, हदिया कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। फ़िलन आप अकल्लन अपना नाम, जिस तरह कहते हैं ना उंगली कटा के शहीदों में नाम, तो आप कुछ ना कुछ अपना नाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में, इस मिशन में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में, इस प्रोग्राम में अपनी मोहब्बतों के इजहार में आप ज़रूर मिलाएं, ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि कुछ भी हासिल नहीं होता। नो पेन नो गेन वाली बात है। जब तक आप तकलीफ़ और ज़हमत महसूस नहीं करेंगे कुछ भी हासिल नहीं होती चीज़। लिहाजा थोड़ा
थोड़ा सा आप भी इस चैनल के चिराग में अपनी तरफ से ईंधन को शामिल कीजिए ताकि ये गुल होने से महफूज रहे। और अगर आपको तस्कीन मिलती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बात करने में तो ये तस्कीन और लोगों तक भी पहुंच सके। बहरहाल कम से कम आपकी अकीदत यही होगी कि आप कॉल करते हैं और फिर आप मोमिनीन तक नंबर शेयर करते हैं, ये भी आपकी अकीदत है। और अगर आप इसके अंदर अपने तरफ से नजराना अकीदत भी शामिल कर देते हैं तो ये हमारे लिए भी आपकी तरफ से अप्रिशिएट वाइज एक मदद हो जाती है और थोड़ा सा चैनल की मदद भी हो जाती है। और हमें अंदाज़ा होता है कि मोमिनीन इसको अहमियत देते हैं और चाहते हैं कि ये चिराग जलता रहे, रोशन रहे। बहरहाल जलना और रोशन रहना बहरहाल एक नफासत है इन कलाम अल्फाजों में। बहरहाल हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जला देना और रोशन कर देना एक मुख्तलिफ मानों में है, लेकिन हम कभी कभार रोशन के लिए भी जला देना इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह हम सबको हमेशा हिदायत पर साबित कदम रखे। बहरहाल आप सब से यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को जिस तरह चैनल आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुजूर में पेश करता है, मोमिनीन के हुजूर में इस चैनल को पेश करने के लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो इसमें आप शामिल रहेंगे। इससे ज़ाहिरी बात है, एक नतीजा खेज सी बात यही है, जो भी हम नेक अमल करते हैं आखिरत के लिए करते हैं। दुनिया के लिए जो अमल किए जाते हैं उनका अजर दुनिया में ही मिल जाता है। अगर आप आखिरत के लिए करेंगे इसका अजर आपका आखिरत में कहीं ज़्यादा है इससे कि जो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो लिहाजा उसमें आपने शामिल होना है और अपनी मोहब्बतों को खुलकर ज़ाहिर करना है और यहाँ पर शर्माना घबराना नहीं है। बहरहाल माह शव्वाल में हम पहुँच चुके हैं और आज 5 तारीख भी हो चुकी है। इस उन्वान से ये हमारे साथ अपने साथ हमारे लिए बहुत सारी रहमतें लेकर आया है। इस महीने में रमज़ान अज़ीम के बाद खुशियों और इबादत को तरोताज़ा करने का मौका मिलता है कबूलियत के लिए। देखें, शैतान भी आज़ाद हो जाता है और हमारे ऊपर जो इजाफी कैदो बंद थी शरीयत के एतबार से, अब हम कहेंगे शरीयत ने हमें आज़ाद छोड़ दिया, ला इकराह फिद्दीन, इतना भी आज़ाद नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ला जबरा वाला तफवीदा वाली बात को जहन में रखना चाहिए हमें कि हमारे पर ना जबर है, ना ही तफवीद है, ना ही मुकम्मल ज़बरदस्ती की गई है और ना ही मुकम्मल हमें आज़ाद छोड़ दिया गया। यानी कहीं ना कहीं तो जबर है ना, ला इकराह फिद्दीन। हाँ, जो साहिबान दीन है उनको इकराह नहीं है दीन के अंदर, लेकिन जहाँ पर हमारे जैसे कम इल्म और कम अमल और कम शऊर, कम अक्ल जब दीन की तरफ माइल होना चाहते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं इकराह हो जाता है। हमें जाना था, सुबह ही सुबह उठेंगे, दफ्तर में देर हो जाएगी, नमाज उठने से हमारी परेशानी बन जाती है, क्लास में नींद आती रहती है, ये हमारे जैसों के लिए है। तो यहीं पर तो दीन का जबर होता है, यहाँ पे पढ़नी है, कहीं भी जाओ पढ़नी है। ज़ोहर के वक्त में टाइम कम होता है, लंच भी करना होता है, नमाज भी पढ़नी होती है। हाँ, कज़ा नहीं होती तो ताख़ीर से पढ़ लीजिए। हाँ, अगर कज़ा होने का डर हो तो मुख्तसर पढ़िए ज़रूर, मुख्तसर पढ़ लें, मुख्तसर, मुस्तहब्बात को छोड़ दें, वाजिब पढ़ें ज़रूर। लिहाजा उसमें आपके लिए ये छूट रखी गई है और यहाँ पे आपके लिए इजबार हो जाता है। और इसी तरीके से मगरिबैन की नमाज है, जितना जल्दी पढ़ें उतना ही अच्छा, देर ना करें। बहरहाल हम जहाँ पे भी रहें हम दीन के तहत हैं, दीन के ज़रिए से हैं, दीन के सबब से हैं। दीन के सबब ना हो हमारे अंदर तो ऐसा ऐसा बेदीनी आती चली जाती है और बेदीनी जहाँ पर हावी हो जाती है वहाँ पर इंसान नाम का तो मुसलमान रह जाता है, काम का मुसलमान नहीं रहता। लिहाजा अमली मुसलमान होने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम से विला का इजहार ज़रूरी है और इस इजहार अक़ीदत व मवद्दत के सफ़र के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 आप सबको अपने साथ रखता है। बहरहाल माह शव्वाल के पहला दिन जब हम देखते हैं तो उसे हम ईद उल फित्र कहते हैं। मीठी ईद हमारे सादा ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है, मीठी ईद। और मज़ीद सादा करूँ तो सेवियों वाली ईद, सेवियाँ क्योंकि हर घर में बनाई जाती है, पता नहीं ये रीत आई कहाँ से थी अल्लाह जाने, लेकिन सेवइयों वाली ईद बन गई है। ये सेवइयाँ पकती हैं, सेवइयाँ खाना लाजिम हो जाता है। छुहारा डली सेवइयाँ एक ख़ास लुत्फ़ पैदा कर देती हैं और खालिस दूध के साथ बनी हुई सेवइयाँ एक ख़ास कैफियत पैदा कर देती हैं। और जब भी जिक्र करें, अच्छा सेवइयाँ हमारे यहाँ मखसूस ईद से ही हो गई, गो कि आम दिनों में पकाया जाता है। फातिमा बुतूल साहिबा मुल्तान से हमारे साथ शरीके महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम
फातिमा बुतूल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको हमारी आवाज़ आ रही है? चले, दुनियावी वसाइल हैं, कहीं पर भी धोखा दे जाते हैं। बहरहाल देखिए कहाँ कहाँ तक हमने धोखे उठाने हैं। अल्लाह ताला हम सबको धोखा खाने से बचाए, धोखा देने वालों से में ना रखे। अल्लाह ताला हमें ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि धोखा एक किस्म का जुल्म है ना, और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जालिमों में ना रखियो कभी भी। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको जुल्म करने वालों में ना रखे। जुल्म कोई हमारे ऊपर कर ले, अल्लाह ताला हमें इतनी भी कुदरत दे कि हम उसका जवाब दे सकें, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह हमें ज़ालिमों में ना रख, हमें जुल्म करने वालों में ना रख। और बहरहाल हम करने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि उर्दू ज़बान के अंदर ज़ालिम करने वालों के बग़ैर इसमें फ़ाइल का माना नहीं देगा, लिहाजा वरना ज़ालिम ख़ुद भी अरबी ज़बान के अंदर जो कहा जाता है उसका माना जुल्म करने वाला ही है। लेकिन हम अपनी ज़बान की कमी कास्ती के सबब से अपने अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं ताकि आम फहम हो जाए बात। लिहाजा खासाने खुदा के लिए माह शव्वाल की पहली तारीख़ ईद का दिन है, और ईद उल फित्र का दिन होता है शुक्राने का दिन है, खुशी का दिन है। मीठा अमूमन हमारे यहाँ खुशी से ही मरबूत किया जाता है। गो के हमारे यहाँ नज़र नियाज के अंदर शहादत की मजालिस व महफिल के अंदर भी, शहादत की मजलिस में या कोई हमारे यहाँ आज़ादारी का प्रोग्राम हो, आज़ादारी से मुताल्लिक़ कोई हमारे यहाँ एक मजलिस हो, तो उसमें भी हम कोई मीठी चीज़ पका सकते हैं। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ ख़ास तौर पर मीठी चीज़ खुशी से मुताल्लिक़ चीज़ शुमार की जाती है, इसलिए सेवइयाँ शायद मखसूस हो गई, या पता नहीं सादा और जल्दी पकने वाली चीज़ थी, क्योंकि इससे इफ्तार इसी, हालांकि रोज़ा नहीं होता लेकिन पहला खाना जो सुबह के वक्त नमाज पढ़ने के बाद खाया जाता है वो सिवैयाँ होता है, इसलिए इसे इफ्तार के माने में कह दिया जाता है। बहरहाल नज़र देकर खाते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और अब्बास अलैहिस्सलाम चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम अपने मरहूमीन का फातिहा भी देते हैं। ईद नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो अपने मरहूमीन की कबूर पर भी जाते हैं ताकि ईद के दिन में बड़ों को याद रखा जाए। इस उन्वान से हम कबूर पर भी जाते हैं और फातिहा खानी के लिए कब्रों पर, कब्रिस्तान पर ज़रूर जाते हैं। बहरहाल फितराना अदा करने के बाद इंसान अपने अल्लाह के हुक्म की तकमील करते हैं और मुस्तहिकीन तक वो मदद पहुंच जाती है। फितराना अदा करना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर वाजिब है ताकि मुआशरे के अंदर एक तवाज़ुन कायम हो जाए। देखें, मालियात का एक सिलसिला जो रखा गया है, ज़कात की सूरत में हो, खुम्स की सूरत में हो, चाहे वो फितराने की सूरत में हो, सदक़े की सूरत में हो, या कोई कफ़ारे की सूरत में हो, ये सब के सब दियत की सूरत में हो, फ़िदिये की सूरत में हो, ये माल से क्यों किया गया? ताकि गरीबों की मदद होगी तो उनके लिए जो आपने नेक काम किया है उस सब से अल्लाह आपके इतने बड़े गुनाह को माफ़ कर देता है और आपके लिए नेकियों के रास्ते आसान हो जाते हैं। इस उन्वान से शरीयत के अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं गरीब, फ़ुक़रा, मसाकीन, ज़रूरतमंद, मोहताजों के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस तरीके से तवाज़ुन बरकरार रहता है, अमीरों से निकल जाता है, गरीबों तक पहुँच जाता है। बहरहाल माशरे में तवाज़ुन कायम रहे इसलिए ये चीज़ हमारे लिए वाजिब करार दी गई है फितराने के तौर पर। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मिया शव्वालन लिअन्न फीहि शालत ज़ुनूबुल मोमिनीन ऐ इर्तफ़ात। नाम रखा गया है शव्वाल को क्योंकि इसमें तमाम मोमिनीन के गुनाह गिर जाते हैं। शाला यशूल, शाल गिरा देना के माने में है, और इर्तफ़ात उठा लिए जाते हैं। बहरहाल ये महीना पाकीज़गी का महीना है, हर महीना ही पाकीज़गी का है। हमें हुक्म जो पाकीज़गी का है, पाकीज़ा लोगों से मुतवस्सिल रहने के लिए ही हम ताहिर व मुताहिर मौला हैं हमारे, लिहाजा हमें मुतवस्सिल रहने का भी उन्हीं से कहा गया, उन्हीं को इमाम मानने का कहा है, उन्हीं के पीछे चलने का कहा गया है। तो लिहाजा हमें उन्हीं के पीछे पीछे चलना है। इस उन्वान से पाकीज़गी और रूहानी बुलंदी का पैगाम लेकर ही आता है, क्योंकि हम रमज़ान अज़ीम के बाद नेकियां कर कर के, रोज़े रख रख के, नमाज़
नमाज़ें पढ़ के, कुरान पढ़ के हम बुलंदी ईमान पर, बुलंदी अमल के मकाम पर साबित हो गए होते हैं। इसलिए बाद में ये सिलसिला जारी रखने के लिए अल्लाह ताला इब्तिदा करते ईद से कि अब तुम्हें खुशी दे रहा हूँ, खुश हो जाओ। इसके बाद देखेंगे कि पहले तो तुम्हारे ऊपर ख़ुद वाजिब किया था, मुस्ताहब समझ के भी अमल करते हो कि नहीं करते। बहरहाल हम करीब हों दूर हों, मौला पर सलाम भेजना हमारे लिए लाजिम है, क्योंकि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह उसके फरिश्ते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि और उनकी आले पाक पर दरूद भेजते हैं। तो ए अहले ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, आप उन पर दरूद भी भेजिए, सलाम भी भेजिए। इस तरीके से सलाम होना चाहिए जो सलाम कहलाने लायक हो, यानी खुलूस दिल के साथ आपने उन पर सलामती भेजनी है। इंसान का दरूद भेजना और है, अल्लाह की तरफ से दरूद भेजा जाना और है। इंसान का दरूद भेजना अल्लाह से तकाज़ाए बरसात हो, बारान हो, फवारान हो, इकसार यानी कसीर हो जाने की सूरत में है। रहमत व बरकतों का अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो दरूद और रहमत है, नेमतों, बरकतों, तहारतों, रहमतों, शराफतों, नजाबतों का पैहम सिलसिला बरकरार और मुस्तमिर होने के माने में है। बहरहाल हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो सलाम भेजते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह तू सलाम भेज, हमारी क्या औकात कि इन पर सलाम भेजे, हमारा सलाम मुख्तसर सा सलाम होगा, तेरा सलाम जब इनके ऊपर आएगा तो ऐसा सलाम होगा कि इनके ऊपर जो सलाम वारिद होगा, इन पर सलाम नाजिल होगा, तो इन पर सलाम करने वाला भी सलामतियाँ पाकर यहाँ से जाएगा। लिहाजा इन पर सलाम करना हमारे लिए लाजिम है। अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो फासले तो कोई माना रखते ही कोई नहीं। हम जब सलाम भेजते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर, तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ सलाम भेजिए। एक मरतबा है बेतवज्जो नींद की हालत में, गनूदगी की हालत के अंदर है, जल्दी जल्दी करने के लिए भागना है, बस जल्दी ख़त्म हो गई नमाज या मसलन मजलिस ख़त्म हो गई, तमाम हो गई, नहीं, एक मरतबा खुलूस के साथ भेजते हैं। खुलूस के साथ जो सलाम होता है ना, यही मकसूद है। इसका जवाब हमें आता है। जब बेतवज्जी से सलाम करेंगे तो जवाब कैसा होना चाहिए। लिहाजा सलाम जब आपका सच्ची मोहब्बत के साथ होगा, चाहे फासले से ही क्यों ना हो। देखें, अब मोमिनीन कॉल करते हैं, गिरिया करते हैं, मौला पर सलाम भेजते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, तो किसी भी कोने में हो फ़र्क नहीं होता कि वो रुख करते हैं मौला की तरफ सलाम पेश कर रहे होते हैं। अब टेलीविज़न में आकर क्यों सलाम करें? वो टेलीविज़न में आकर सलाम करने का कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ आकर सलाम पेश करना चाहें और वो समझते हैं कि उनकी आवाज़ इस ज़रिए से पहुंच जाए, तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लिहाजा इस तरीके को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और बहरहाल कुर्बत है, हर चीज़ में कुर्बत शर्त है, इसको इखलास कहा जाता है। इखलास दरअसल यही कुर्बत है और इसी के ज़रिए से हम नजात हासिल कर सकते हैं। असले कुर्बत जो है वो इखलास है और इखलास के ज़रिए से हम कुर्बत हासिल करते हैं। लिहाजा हमें ये कुर्बत हासिल करनी है तो इखलास को अपने उस किरदार इखलाक में शामिल करना होगा। जहाँ जहाँ हम इखलास के साथ होंगे, तरक्की करते चले जाएंगे। सलाम भी हमारा तरक्की का सबब बनेगा और जवाब भी हमारे ऊपर तरक्की की सूरत में ही नाजिल होगा। इब्ने उमैर रिवायत करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का रास्ता दूर हो, उसके घर से हमारी कब्रों तक फासला ज़्यादा हो, तो वो किसी खुली जगह पर खड़ा हो जाए, 2 रकत नमाज पढ़े और हमारी कब्रों की तरफ इशारा करके सलाम करे, क्योंकि यकीनन वो सलाम हम तक पहुँच जाता है। इस मकसद बहरहाल आपका सलाम तो वहाँ से भी पहुँच जाता है। अगर कॉल के ज़रिए से आवाज़ पहुँचा ले, कोई बुराई नहीं है, मौला ने मना नहीं फरमाया, इसमें गुनाह नहीं है, कोई आपने ऐब नहीं किया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, कोई आपने ऐब अंजाम नहीं दिया है। आप जो सलाम भेजते हैं। नज़र अब्बास साहब हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी, मैं मौला हुसैन की बारगाह में सलाम करना चाहता हूँ। जी, बंदे हकीर ने सलाम पेश किया आपकी खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क़िबला या अली मदद। आपके दर्जात बुलंद।
मौला अली मदद। जनाब आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मिली हुई है। प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है। 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12, इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में गूंज रही है। तो मेरा भाई करबला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, अकीदतों भरा, मवद्दतों भरा मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए ताकि जल्द आप करबला मौला आ सकें। बिस्मिल्लाह। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अली इब्नुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम बाबुल फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सलाम। परवरदिगार मेरे मौला मेरे आका सलाम को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात परेशान को दूर फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से ईरान को फतह व कामयाबी नसीब अता फरमा। अमेरिका को, इसराइल को नूस को नाबूद फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से दुनिया का कोई गम न जैसे ग़ाम हुसैन के। परवरदिगार आले वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इमाम की ज़ियारत का शरफ अता फरमा। इमाम के अंसार में अता फरमा। और जहाँ परवरदिगार आलम पर जुल्म हो रहा है उसको जुल्म से भरी हुई दुनिया को उसको निजात दे दो। अमन अमान परवरदिगार सलाम तेरे आले मोहम्मद के सदक़े से। मौला हुसैन की मौला अब्बास की ज़ियारत नसीब आले मोहम्मद के सदक़े से। इमाम रज़ा की ज़ियारत नसीब बारिमाम 14 मासूम की ज़ियारत से मुशर्रफ अता फरमा। परवरदिगार जो गुनाह कबीरा सगीरा उन्हें माफ फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद रिज़्क़ रोज़ी में फरमा, बरकत नाज़िल फरमा। खुसूसन मेरे भाई को सेहत व कामला अता फरमा। मेरी वालिदा को मग़फ़िरत फरमा, उनका आला दर्जा बुलंद फरमा। जो गुनाह कबीरा सगीरा में माफ फरमा। परवरदिगार आलम दुनिया का कोई गम न जैसे ग़ाम हुसैन के। और आपकी टीम को मुनव्वर अता फरमा और तरक्की अता फरमा, इस काम को बुलंद अता फरमा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगर आप इजाज़त दें तो मौला आपको सलामत रखें। आपसे 1 मिनट का वक्त लेना चाहूँगा। इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं मुश्किलात के हल और अपने बाल बच्चों की सेहत व आफियत, माल और रिज़्क़ में इजाफे और जल्द ज़ियारत पे आने की नीयत से नज़र करते हैं। आपका नाम भी माशाल्लाह नज़र अब्बास अलैहिस्सलाम है। तो मौला आपको सलामत रखे। कि आप भी इस नज़र में शरीक होना चाहेंगे? जी मैं हुआ हूँ पहले से आपकी नज़र में। मेरे भाई मेरे जो मिलके करते हैं जो भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। हाँ, आप तो पहले से ही नज़र अब्बास अलैहिस्सलाम में आप खुद भी नज़र कर चुके हैं। मौला ये नज़र करम आप पर हमेशा जारी और सारी रखे। जी 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 बस हमारे लिए खैर दुआ करा करें कि परवरदिगार जो मुश्किलें आते हैं उनको परवरदिगार मौला मेरे आका सुन लें। हमारी मुश्किलों को भी थोड़ी सी जो जायज़ें आ जाए उनको हल अता फरमाए आले मोहम्मद के सदक़े से। बेशक वो हमारे आवाज़ से वाकिफ़ हैं। बिल्कुल आपके लिए दुआ। बेशक आपकी बात वो सुनते हैं। हाँ, इजाबत में वो मसलहत हमसे बेहतर जानते हैं। कभी ताख़ीर हो जाती है तो यकीनन आपके लिए अजर उनके यहाँ महफूज होता है। आपके लिए दुआ है मौला आप सबको सलामत रखें, खैर व आफ़ियत से रहें और शर शैतान व आदा से महफूज रहें। मौला आपके घर में आफ़ियत रखें, बुज़ुर्गों का साया सलामत रहे, मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। मौला आपको कभी भी किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दें। देखिए ज़िंदगी में हर हाल में कहीं ना कहीं किसी न किसी के मोहताज हैं। खाना पकाने के लिए अपनी ज़ौजा के मोहताज हैं, आटा लाने के लिए हम चक्की के मोहताज हैं जहाँ से आटा लेकर आना है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों में हर चीज़ हम खुद नहीं कर सकते, नाकाबिल हैं हम। गाड़ी सफ़र करना है तो ड्राइवर के मोहताज हैं, या मसलन कार लेनी है, लिहाजा मोहताज तो हैं। लेकिन दुआ मोहताजी ख़त्म होने की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मोहताजी ख़त्म होने का मतलब तो ज़िंदगी ख़त्म होना हो जाएगा। इसी तरह मुश्किलात मोहताजी भी कई किस्म की होती है ना। एक होती है जो अल्लाह ना करे किसी का मोहताज, यानी जिस्मानी मोहताज ना हो, रूहानी मोहताज ना हो। ये चीजें भी तो होती है ना। सिर्फ ये तो नहीं कि ये तो वैसे मोहताजी नहीं होती। ये तो आदमी का एक सहारा होता है, एक दूसरे की हेल्प होती है, एक वसीला होता है। ये तो वसीला है। हम जो है ना मदद कह रहे हैं कि जो परवरदिगार जो आपका गुलाम है, आपका नौकर है, और किसी के ना रहें, किसी के आगे हाथ ना फैसाने। ये कामिल हो जाती है दुआ इस तरह से। देने वाला हाथ बनाना, लेने वाला हाथ नहीं बनाना, ये मोहताज इस मोहताजी से। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला हमेशा आपके माल और रिज़्क़ में इजाफा किए रखें। और वो हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में एक दुआ होती है, इतना दें कि रख के भूलें। बहरहाल भूलने की दुआ नहीं करूँगा मैं आपके लिए। भूलने से तो फिर वो मिलेगा भी नहीं ना। जो भूल जाएंगे तो फिर कहाँ से मिलेगा वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाफ़िज़ा आपका
कवी रहे और मौला आपको बेहद बेहिसा अता फरमाए, मवद्दत भी, मार्फत भी, कुर्ब भी अपना अता फरमाए मौला। सलामत रहें, मोहब्बत का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगी। आपका अपना प्रोग्राम है, आप 2 घंटे इतना टाइम लेने का मकसद यही था ताकि आपको पता और याद रह जाए ये वक्त इसका क्या है, ताकि हम आइंदा भी कॉल कर सकें। और 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें और इस प्रोग्राम में अपनी मोहब्बतों को शामिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में रहें। बहरहाल हम दूर खड़े होकर भी सलाम करेंगे तो मौला के फरमान से हमें ये बात गारंटीड हो गई कि हमारे सलाम का जवाब मिलता है और हमें अजर मिलता है इसका। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं कि आना छोड़ दें। मोहतरमा जनाब सैयदा संजीदा नकवी साहिबा खैरपुर मीरस सिंध से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, या अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया है प्रोग्राम का टाइम चेंज हो गया है। पाकिस्तानी टाइम रात में 10 से 12 के दौरान इसमें मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है और आप हमारी मुस्तकिल डोनेटर, स्पॉन्सर और कॉलर हैं। मौला आपको सलामत रखे। उम्मीदवार हूँ 14 मोमिनीन को ये वक्त भी बताएंगी और ये तीनों व्हाट्सएप नंबर भी शेयर फरमाएंगी। करबला की तरफ आप रुख कर लीजिए, आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में गूंज रही है। दिल पे हाथ रखें, नजरें झुका के अपनी मोहब्बतों के लिए मौला की बारगाह में तवस्सुल के लिए, मुश्किलात को हल करने के लिए सलाम पेश कीजिए इस अंदाज में कि आपके ऊपर जवाब सलाम नाज़िल हो तो आप भी जल्द करबलाए मौला आ सकें। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदातुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास सय्यदी व मौलाई इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलामु अलैका शहीदुल मज़लूम, अस्सलामु अलैका साहिब अशरफ ज़मान, अस्सलामु अलैका सुबैनातुन निजात, अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद का खान वाले अबू तालिब पर मौला परेशानी दूर करना, मौला मुझे सेहत अता करें, मौला मेरे माँ बाप की मग़फ़रत करें, मौला मुझे करबला का इज़्न दें, मेरी मोहर लगा दें मज़द अब्बास शेर खुदा कि मैं करबला आऊँ ज़ियारत करने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, जज़ाए खैर। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता करे। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। दुनिया आखिरत आपकी कुर्ब व जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हो। आपके तवस्सुल करने का शुक्रिया, आपके शरीक होने का शुक्रिया। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। सदा सलामत रहें, खैर व आफियत से रहें, सेहत व आफियत के साथ रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सलामत रहें। बहरहाल ये मकसद प्रोग्राम का यही है, मोमिनीन तवस्सुल करें, सलाम करें मौला की बारगाह में। अगर इम्कान पजीर हो, मुमकिन हो तो आप अपनी तरफ से इस प्रोग्राम में नज़र, हदिया, डोनेशन और अपने चंदे को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और बहरहाल आइए, ये आपके लिए गनीमत है प्रोग्राम एक एतबार से। इस मुश्किल के ज़माने में जहाँ पर हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, अपने मौला से तवस्सुल का मौका, ठीक है आप करते होंगे, तवस्सुल करते होंगे, लेकिन जब एक वक्त और जगह मुअय्यन कर लेता है इंसान, एक ख़ास किस्म की कैफियत हासिल हो जाए तो इंसान को मज़ीद एक चाशनी सी महसूस होती है। मसलन इमाम बारगाह में तवस्सुल, घर में तवस्सुल, मजलिस के बाद तवस्सुल, घर में हदीस किस्सा के बाद तवस्सुल, शब जुमा में हदीस किस्सा, किसी शादी के अंदर पढ़ी गई हदीस किस्सा। ज़ाहिरी बात है कहीं ना कहीं फ़र्क तो होता है ना। इसी तरीके से आप ज़िक्र करते हैं, घर में मौला को पुकारते हैं, लेकिन एक मरतबा आपको लगता है करबला आ रहे हैं, करबला आके तवस्सुल है। करबला नहीं आ सके तो दरमियानी रास्ता करबला आवाज़ ही पहुँच जाए किसी तरीके से। चले, एक आसरे की बात है, असल बात है हमें आसरा चाहिए मौला का, हम आसरे के मुतमन्नी हैं। लिहाजा इसके लिए बेहतरीन मौका है कि
आप यहाँ पर कॉल करें, मौला को सलाम पेश करें और अपनी मोहब्बतों अकीदतों का इजहार करें। इस तरीके से हमारे लिए एक वसीला मज़ीद खुल जाता है करबला की जानिब। लिहाजा आप सब करबला की तरफ रुख कीजिए, मवद्दतों का इजहार कीजिए, मौला से अपनी अकीदतों का इजहार कीजिए। ये आपका अपना प्रोग्राम है, इसमें आपका शामिल होना आप लोगों के लिए शरफ़ की बात है, क्योंकि आप खुद इसके बानी हैं और ख़ुद ही आप इसके मुंतज़िम हैं, ख़ुद ही आप इस प्रोग्राम के चलाने वाले, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके दम कदम से चल रहा है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। हम इसे मैनेज ज़रूर करते हैं, लेकिन असल ये आप लोगों के लिए प्रोग्राम है। जब आप नहीं होते तो ज़ाहिरी बात है फिर हमें प्रोग्राम को चलाना होता है। लिहाजा महनाज साहिबा गुजरात इंडिया से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपका शुक्रिया बहन, आपने प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है। ये 2 घंटे दौरानिए का शबाना प्रोग्राम है। इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान रोज़ाना लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसमें ख़ुद भी आप शरीक हुई हैं, आपका शुक्रिया। और उम्मीदवार हैं 14 मोमिनीन को ये नंबर भी शेयर फरमाएंगी ताकि वो भी इसमें शरीक हो सकें। उन्हें वक्त भी बताइएगा। गुजरात के मोमिनीन माशाल्लाह अहले विला अहले मवद्दत है। आइए, करबला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखिए, नज़रें झुका के मौला की बारगाह में मोहब्बतों अकीदतों भरा सलाम, ऐसा सलाम जिसके ज़रिए से आपकी मुश्किलात हल हो जाएं, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, मरहूमीन की मग़फ़िरत हो जाए, बाल बच्चों की सेहत हो, बहन भाइयों अजीज़ों की सेहत हो और बुज़ुर्गों का साया आपके सर पर सलामत हो। ऐसा सलाम भेजिए कि जल्द करबला आ जाएं। बिस्मिल्लाह, करबला की तरफ रुख कर लें, नज़रें झुकाएं, सलाम भेजिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अम्मी, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मौलाई या सय्यदी या बाबुल हवाई, अस्सलामु अलैका या सक्काए सकीना, सलाम अलैका, अस्सलामु अलैका या आलमदार हुसैन, अस्सलामु अलैका या सालार हुसैन, अस्सलामु अलैका या बाब हुसैन, या वफादार हुसैन, या काशिफ कर्ब वजीर हुसैन, इक्शिफ कर्ब बिहक या फिकर हुसैन, अल्हम्मा कुल्ले वली अकुल हुसैन, सलवातुक अलैहा व fi hadhihi as-saati wa kulli saatin waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasira wa dalilan lana wa tuskinu wa tawfiq ya ये मेरे मुझे तंदुरुस्ती शिफा की देता आने वाले से काम कीजिए मैं आपके नाम गुलाम इनके मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ, आपकी मुश्किलात को हल फरमाएँ, जो आपकी दिली तमन्नाएँ हैं मौला हल फरमाएँ, बाल बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाएँ, जो जो आपकी नेक हाजात हैं मौला कबूल फरमाएँ और जल्द करबलाए मौला आएँ। ये मनादिर जो टेलीविज़न में दिखाए जा रहे हैं, अगर आप टेलीविज़न में देख रही हैं या किसी मोबाइल या किसी और डिवाइस के ज़रिए से देख रही हैं प्रोग्राम, तो ये मनादिर जो दिल को लुभा लेने वाले करबला के मनादिर हैं। खुदावंद मुताल आपको भी इन मनादिर को अपनी आँखों से देखने की तौफीक अता फरमाए, अपने सब अजीज़ों के साथ मिलजुल कर आएँ, यहाँ पर मौला की बारगाह में मौला की अज़ादारी भी करें, मौला से तवस्सुल भी करें और मौला को उनके शहीदों का पुरसा भी दें, जल्द करबला आने का शरफ़ हासिल हो। बहन, आप जिस प्रोग्राम में शरीक हुई हैं इसका नाम 14,000 स्पॉन्सर है। मोमिनीन इसमें कॉल करते हैं मुश्किलात के हल, परेशानियों के इजाले के लिए नज़र में शरीक होते हैं, तो क्या आप भी शरीक होना चाहेंगी? इंशाअल्लाह मैं आपसे जरूर राब्ता करूंगी जब भी जरूर 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 हस्ब तौफीक जब हो सके, फ़कत नियत कर लें अभी आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास अमाउंट। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। हस्ब तौफीक जो आपके लिए आसान हो, ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए बर्डन बनाएं। और इस नज़र को आप 4 मासूमीन शहादाए करबला में से किसी एक के नाम कर दीजिए। कोई एक नाम ले दें, मौला अब्बास, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, कोई एक नाम ले दें अहले बैत के घराने से।
बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका मौला आपके पर्दे को सलामत रखें, आप पर रहमत बरकतें नाजिल हों, अहले बैत अलैहिस्सलाम की विला पर साबित कदम रहें और जल्द शाम में बीबी की ज़ियारत नसीब हो आपको, बीबी के भाई की ज़ियारत आपको करबला में नसीब हो, बीबी के बाबा की नजफ़ में ज़ियारत नसीब हो, मदीना जाना नसीब हो आपको। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। और 14 मोमिनीन को ये नंबर शादी के लिए बेहतरीन हम सफर की भी दुआ कीजिएगा कि हुसैनी काबिन मौला के सदके में भी अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपके लिए एक नेक हम सरफर अता फरमाए जो साहिब दीन हो, साहिब विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले। नेक सीरत, नेक सूरत आपके लिए शोहर अता फरमाए, रिश्ता अता फरमाए और आपको खुशबख्त ज़िंदगी अता फरमाए। जो आपकी मुश्किलात हैं मौला हल फरमाए और मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। बहुत शुक्रिया। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। जब जी चाहे आप कॉल कर सकती हैं। प्रोग्राम का टाइम आपको मालूम हो गया, रात में 10:30 से 12:30 के दौरान इंडियन टाइम के मुताबिक आप कॉल कर सकती हैं। रोज़ाना आपकी खिदमत में रहेंगे। सदा आबाद रहें। तवस्सुल करने का शुक्रिया आप, और यहाँ पर स्पॉन्सर करने का शुक्रिया, नज़र करने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, आबाद रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मोमिनीन, ये जो डोनेशन पेश करते हैं यहाँ पर, नज़र को पेश करते हैं, इससे ज़ाहिरी बात है आप लोगों की मोहब्बत चैनल के साथ और अपने मिशन को मौला तक पहुँचाने, अपनी तवस्सुल को मौला तक पहुँचाने की ये जो कैफियत है ना, इसमें आपके लिए भी तरक्की होती है। और इस चैनल को तो ज़ाहिरी बात है अपने दिए को जलाने के लिए कुछ ईंधन की ज़रूरत है, जो आपकी जानिब से ही मैसर होता है तो ये चैनल चलता है। लिहाजा आप लोग इसमें अपनी माली मुआवनत को ज़रूर शामिल कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन अगर देखें, हम यहाँ पर करबला मौला में मौजूद हैं, आपका कांटेक्ट मौला से करा रहे हैं, तो लिहाजा जब आप तक पैगाम पहुँच रहा है और आप कॉल सुनते हैं, कॉल करते हैं, तो उसमें आपके जहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्हें आप समझते हैं साहिबान इस्तिताअत हैं, वो डोनेट कर सकते हैं, तो आप उनको भी माइल कीजिए कि इस दीनी इदारे को भी अपना इदारा समझते हुए जहाँ दूसरे इदारों की मदद करते हैं, इसे भी अपनी गुड लिस्ट के अंदर शामिल कर लीजिए ताकि आप भी इसमें मुआविन हो सकें और अपनी मोहब्बतों को पेश कर सकें। मौला यकीनन आप पर रहमतें बरकतें नाजिल किए रखेंगे और हम भी दुआ करते हैं और आप भी यकीनन अपने लिए दुआ करते हैं। क्या पता किसकी दुआ कामयाब हो जाए। बहरहाल अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक तरीक़ेकार आप लोगों का मौला को सलाम पेश करना है और अपने अतियात जो आप भेजती हैं वो भी आपके लिए खुद ब खुद बग़ैर मांगे दुआओं की कबूलियत का सबब बन जाते हैं। और ये जो आप अतिये देते हैं, ज़ाहिरी बात है अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़हब की तरवीज कर रहे हैं आप। कोई नाम सुनता है चैनल का, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, किससे मंसूब है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। नसरीन ज़हरा साहिबा बहावलपुर से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। पीर मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। बहन, प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर। पाकिस्तानी टाइम रात में 10 से 12 के दौरान 2 घंटे दौरानिए का शबाना प्रोग्राम है और माशाल्लाह करबलाई मोहल्ला से रोज़ाना लाइव होता है। इसमें आप रोज़ाना कॉल कर सकती हैं। आप पहले से इस प्रोग्राम में डोनेट कर चुकी हैं क्या? जी हाँ। माशाल्लाह, मौला कबूल फरमाए और उम्मीदवार हैं, दुआ गो हैं कि मौला आपको मंथली इसकी स्पॉन्सर में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो इस प्रोग्राम में शरीक हो सके। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके शहीदों का पुरसा देने की नीयत से, अपनी दुआओं की कबूलियत की नीयत से मौला को ऐसा सलाम पेश कीजिए कि जवाब सलाम में जल्द करबलाए मोहल्ला पहुंच जाएं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन। मौला मेरी जो हाजात हैं पूरी करें मौला, मेरे जो परेशानियां हैं दूर करें मौला, मुझे अपने ज़ियारत करवाएं मौला, जल्दी मुझे अपनी ज़ियारत करवाएं, मुझे अपना घर दिलवाएं मौला,
میں پریشان ہوں، میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے مولا۔ میں آپ کے در کی سوالی ہوں مولا، مجھے خالی نہ بھیجیں مولا۔ میری جو پریشانیاں ہیں دور کریں مولا، ایران کو فتح دلوائیں۔ میرے بچوں کی جو دل کی نیک حاجات ہے وہ پوری کریں میرا مولا۔ مولا میری جو پریشانیاں ہیں دور کریں مولا۔ میرے ماں باپ کی قبر پہ رحمت بھیج، میرے خامد کی قبر پہ رحمت بھیج مولا۔ جو بھی مولا مجھے اپنی زیارت کروائیں مولا۔ مولا حسین میں گناہ گار کو اپنی زیارت کروائیں مولا۔ میری جو پریشانیاں ہیں دور کریں مولا، میری جو پریشانیاں ہیں دور کریں مولا، مجھے اپنا گھر دلوائیں مولا۔ الہی آمین، میں پریشان ہوں اپنے گھر کے لیے، مجھے اپنا گھر دلوائیں الہی آمین۔ میرے جو حالات اب بگڑے ہیں مولا، جلدی میرے حالات سنوار دیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آپ بھی دعا کیا کریں مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، اور مولا آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں۔ جو آپ کے ذہن میں دعائیں ہیں، مشکلات ہیں مولا انہیں حل فرمائیں، اور آپ پر رحمت برکتیں نازل ہوں۔ اور دعا ہے کہ جلد آپ کو مولا اپنا گھر عطا فرمائیں، اور شکرانے کی زیارت کرنے کے لیے کربلائے مولا آئے ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے، روزانہ آپ اس میں کال کر سکتی ہیں۔ 14 مومنین کو کم از کم یہ نمبر ضرور شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ بھی پروگرام میں شریک ہو سکے اور مولا سے توسل کر سکے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں۔ مومن اپنے واجبات جیسے خمس اور زکوٰۃ بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ مراجع کے تحت یہ چینل چل رہا ہے، اور اس کے اتھینٹک ہونے کی دلیل یہی ہے کہ علماء کے زیر اثر ہے یہ چینل، کسی شخص کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک جمعیت ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے جس کے تحت یہ چینل چل رہا ہے، اور یہ ایک اتھینٹک چینل ہے۔ اس کے اندر آپ اپنے نظریات، اپنے نظرانے پیش کر سکتے ہیں۔ سیدہ ذکیہ بخاری صاحبہ گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے بہن، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں ملی ہوئی ہے۔ پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 سے 12 2 گھنٹے دورانی کا شبانہ پروگرام ہے، روزانہ کا پروگرام ہے۔ آپ اس میں ہمیشہ کال کر سکتی ہیں۔ کیا آپ پہلے سے اس پروگرام میں ڈونیٹ کر چکی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ دعا ہے مولا آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائے، صحت و عافیت دیں، اور آپ ہمیشہ کے لیے منتھلی اس کی ڈونیٹر ہو جائیں۔ کربلا مولا میں اس وقت آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں اپنے مولا امام حسین علیہ السلام، جن کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے، جن کی زیارت کے لیے ہمیشہ تڑپتے ہیں۔ کربلا کی طرف رخ کر لیں، نظریں جھکا کے ایسا سلام بھیجئے کہ آپ پر رحمت برکتیں نازل ہو جائیں، کسالتیں دور ہو جائیں، رحمت برکتیں نازل ہوں، مال رزق میں اضافہ ہو، اور مولا آپ کو شکرانے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بسم اللہ، سلام بھیجیں مولا کی پاک ذات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم پیدر بارہ امام چودہ معصومین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ مولا جی اس نے زیادہ بخشنے مفت کے ساتھ میرے مولا، میرے مولا یہ تمام پریشانیاں ختم فرما دیں۔ میرے مولا جی ایران کو فتح نصیب فرمائے، مسلمانوں کی فتح نصیب فرمائے۔ مولا جی مولا جی زیادہ بخشنے معرفت کے ساتھ۔ مولا جی پلیز دعا التماس ہے
सलामत रहें, हमेशा आपके लिए दुआ गो हैं, आपकी तरफ से नाइब ज़ियारत हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जब जी चाहे कॉल करती रहिएगा, आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। प्रोग्राम का टाइम और नंबर आपने नोट कर लिया है। 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें। सदा सलामत रहें और मौला के साए तले रहें, रहमतों तले रहें। मौला आप पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, आबाद रहें। हम कह देते हैं कि मौला के साए तले रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम का तो साया हुआ ही नहीं करता था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि का साया नहीं था। हम किस साए की बात करते हैं? मुराद ये होती है उनकी रहमतों तले रहें, उनकी जी। सैयदा सीमा हैदर साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में खुशामदीद अर्ज करता हूँ। प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12, 2 घंटे दौरानिए का शबाना प्रोग्राम। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर और स्पॉन्सर हैं। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। उम्मीदवार रहेंगे। ये वक्त और ये टेलीफोन नंबर्स 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी इसमें शरीक हो सके, मौला से तवस्सुल कर सके। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं। अपने मौला, वो मौला जिन्हें हम हर लम्हे याद करते हैं, उनकी बारगाह में ऐसा सलाम पेश कीजिए कि मोमिनीन आपके साथ तवस्सुल करें और आप भी इस सलाम के सदके जल्द करबला पहुंच सकें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीम, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदातुल निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अबल अब्बास। सबसे पहले तो मैं अपने पाक परवरदिगार आलम की शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे फिर इतनी ज़ियारत नसीब हुआ। खुश नसीब हैं हम कि हम ज़ियारतें पढ़ रहे हैं। और फिर मैं दुआ कहूँ टीम करबला फौज वालों के लिए कि जिनकी वजह से ये हम आज हमारी आवाज़ें अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 है। अच्छा, इमाम हुसैन TV4 के तमाम मेंबरान के लिए खुसूसी दुआएं हैं मेरी कि अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता करें। और फिर मैं दुआ कहूँ अपने वालिदैन के लिए, अपने शोहर के लिए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। फिर मैं दुआ कहूँ अपने चारों बच्चों के लिए, परवरदिगार अल्लाह मेरे चारों बच्चों को कामयाबियाँ अता करें इनको, और उनको मुझे शिफाए कामला अता फरमाएं। जो भी हाजतें मेरे चारों बच्चों की मेरी पूरी हैं मौला हुसैन मौला अब्बास के सदक़े में, क्योंकि मौला हुसैन मौला अब्बास से कहने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे दिलों के हाल जानते हैं, हमारी दुआएं, हमारे हाजतें जानते हैं। या अल्लाह तो हमारी तमाम तर हाजतें हमारे इमाम के सदक़े में पूरी कर दें और हम सबको जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाएं और रास्ते दोबारा बहाल कर दे करबला मोहल्ला के। और या अल्लाह मेरी खास दुआ है आखिर में कि मेरे मौला इमाम ज़माना वक्त के इमाम की जल्द अज जल्द ज़हूर में ताजील फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखें, शाद रहें, खुशहाल रहें। मौला आपको बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाएँ और दुआ गो हैं कि मौला आपके बच्चों को भी माल रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा फरमाएँ कि वो भी अपने लिए नेकी के इस हिस्से में शरीक हो सकें और इस चैनल में भी वो डोनेट कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आपका। मोमिनीन अपने वाजिबात और खुम्स वगैरह, ज़कात वगैरह भी इस चैनल के अंदर जमा करा सकते हैं, क्योंकि ये चैनल उलमाए कराम के ज़ेर नज़र ज़ेर असर चलता है और उलमाए कराम के तहत ही है। और मराजे के फतावे इस चैनल के पास मौजूद है कि जिसके तहत आप अपने वाजिबात शरइया इसमें पर्दाख्त अदा कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ताकि ये चैनल आपकी मजहबी, दीनी, ईमानी खिदमत कर सके और आप भी अहले बैत से मुतवस्सिल हो सके। ज़ुहैब जाफ़र साहब कराची से शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। ज़ुहैब जाफ़र साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, या अली मदद भाई।
मौला आपको सलामत रखे। आपकी आवाज़ कुछ देर से आई, मैं इनका शायद कराची से आ रही है इसलिए देर से आई है। बहरहाल इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में गूंज रही है। खुशामदीद पेश करता हूँ। प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान है। 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम, इसमें आपकी कॉल मिली हुई है। माशाल्लाह से आप पहले से इस प्रोग्राम में डोनेट कर चुके हैं क्या जनाब? वादा करा हुआ है। माशाल्लाह, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मौला आपके माल और रिज़्क में इतना इजाफा फरमाए कि आप बार बार मौला की राह में खर्च करें और इस चैनल के मुस्तकिल स्पॉन्सर हो जाएं और मंथली डोनेटर हो जाएं। आप सलामत रहें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। वो करबला जहाँ पे आने के लिए हर जी शऊर तड़पता रहता है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, अपने मौला, अपने मावा, अपने मलजा की बारगाह की तरफ सर झुकाकर ऐसा सलाम पेश कीजिए कि जवाब सलाम में जल्द करबला आना नसीब हो जाए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अबादिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैकुम या हज़रत अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलल हुसैन वाली इब्न अल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन, अस्सलाम अलैका या शुहदाए करबला, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, जल्द करबला आना नसीब हो, अजीज़ों की ज़िंदगियाँ दराज हों, बुज़ुर्गों का साया आप पर सलामत रहे, मरहूमीन की खुदावंद मुताल मग़फ़िरत फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। दुनिया आखिरत आपकी कुर्ब जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हो, जल्द करबला आना नसीब हो। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, माल और रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। जो नेक हाजात हैं मौला कबूल फरमाए। कॉल करने का शुक्रिया, तवस्सुल के लिए शरीक होने का शुक्रिया। आप हमारे मुस्तकिल कॉलर और स्पॉन्सर हैं। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा सकें। सलामत रहें, फ़ी अमानिल्लाह। नेक्स्ट भी आप कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। वक्त को नोट रखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, आबाद रहें। मोमिनीन अपने वाजिबात, खुम्स, ज़कात और जो अपने वाजिबात शरइया हैं वो इस चैनल में पे कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं ताकि ये चैनल भी तरक्की पा सके और आप भी इसमें शरीक हो सकें। और आपकी पेश की गई ये वाजिबात यकीनन ज़ाया नहीं जाती क्योंकि ये चैनल उलमा के ज़ेर असर, उलमा के फतावों के तहत यहाँ पर ख़र्च किया जाता है और आप इंशाअल्लाह इस अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए रोशन चिराग जलाइए और आपका किरदार यकीनन ये आपको मुस्तकबिल में पता लगेगा कि आप इस्लामिक आइडियालॉजी को फैलाने में जिस भी इदारे में आप मदद करते हैं यकीनन आपका ये खर्च आपके लिए नेकी का हामिल है और नेकी आवर है और नस्लों की पाकीज़गी का सबब है। देखिए, जो भी इदारा होता है उसकी बरकतें, रहमतें सिर्फ उसकी ज़ात तक नहीं होती बल्कि उसका नूर अतराफ़ में, महल्ले में, शहर में, मुल्क में, दुनिया में फैलता है। कहीं ना कहीं कोई तहकीक शुदा किताब, कोई तहकीकी बात, कोई मोहब्बतों की बात कहीं ना कहीं पहुंचती है। बहरहाल आखिरत को संवारने के लिए ये चैनल आपको वसीला मुहैया करता है और आप सबकी शिरकत के ज़रूरी है, शिरकत की हमारे लिए ज़रूरी है। बहरहाल बंदा हकीर आपकी खिदमत में रहा। अब मेरे बाद इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, अगला हिस्सा पेश करने के लिए आपकी खिदमत में मौजूद रहेंगे मोहतरमुल मकाम मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब, ताकि आप लोगों को मौला की बारगाह में पैहम मुस्तमिर तवस्सुल मयस्सर रहे। कॉल करते रहिए, शरीक रहिए, तवक्कुफ़ ना कीजिए। आपकी कॉल्स के हम मुंतज़िर हैं। सलामत रहें।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर के पार्ट 2 में आपके हाज़िर खिदमत है और पार्ट 1 में मुहतरमुल मकाम हरदिल अज़ीज़ अली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला आपसे मुखातिब थे और नहायत ही शाइस्ता अंदाज़ में और नहायत ही शीरी अंदाज़ में आपके साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। और यकीनन एक अच्छी शख्सियत और एक प्यारी शख्सियत के जो जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो यकीनन इंसान जो है वो सुनने में भी इंसान लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो इस सआदत से बहरहाल आप लोग सआदतमंद थे। और दूसरे पार्ट में बंदे हकीर आप लोगों के हाज़िर खिदमत है। शवाल का महीना शुरू हो चुका है। एहसान मशदी साहब हमारे फर्स्ट कॉलर है इस पार्टी के लाहौर से। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। एहसान साहब आप आवाज़ समात फरमा रहे हैं? हाँ जी जी माशाल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस करबला में गूंज रही है। सबसे पहले मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए, मौला हुसैन की खिदमत में, और कोई दुआ भी है वो भी कर लीजिए। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। एहसान साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ एक मुआविन की हैसियत से। तो इंशाअल्लाह आप भी हस्ब तौफीक इरादा रखेंगे नज़र करने का? इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। माशाअल्लाह। अच्छा, शुहदाए करबला में से किसी का नाम ले लीजिए या इमामों में से कोई एक नाम ले लीजिए ताकि ये नज़र निस्बत हो जाए उनसे और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो सकी। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? इमाम बाकर माशाअल्लाह। इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम, मौला हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और इंशाअल्लाह हमारे ऑपरेटर आपके साथ राब्ते में होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि हमारा नंबर आपके मोबाइल में महफूज है और हमारे दीगर नंबर भी यकीनन आपको इरसाल कर दिए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ और दीगर मोमिनीन के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि आप जैसे मेहरबान और अच्छे लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम में मज़ीद भी तशरीफ़ ला सके। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सलामत रहें आप, बड़ी मेहरबानी जी। बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। इससे बेहतर और क्या कि एक तरफ से मौला की ज़ियारत भी हो जाए राह दूर से, और दूसरी तरफ से इंसान जो है अगर हस्ब तौफीक जितना इंसान कर सकता है उस एतबार से नज़र का भी एहतमाम करे। अलबत्ता आप ये एक चीज़ ज़हन में रखिए कि आप जिस उन्वान से भी नज़र करेंगे वो इसका ये नज़र जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जो पूरी दुनिया में नशर व इशाअत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, इसमें ये एक ताउन की हैसियत से शुमार होगी। शवाल का महीना है और शवाल यकीनन हदीस शरीफ में शवाल को रसूलुल्लाह से हदीस है कि शवाल को शवाल इस वजह से कहते हैं कि लिअन्न फ़ीहे शालत ज़ुनूबुल मोमिनीन, जिसमें जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस माह में मोमिनीन की जो गुनाहें हैं उसको उठा लेता है। यानी ग़ालिबन इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में, शायद शाल या शीलो से शवाल हो जाए, मैं कुछ ज़्यादा मुझे वो नहीं है, बहरहाल लुग़त में देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसी से ही इसको लिया गया हो कि शवाल ग़ालिबन मस्दर हो जाएगा। और इससे मुराद ये है कि हदीस शरीफ में फरमाया कि रफ़अत के माने में है उठा देना, रफ़अ यानी उठा देना।
یعنی اس میں گناہیں جو ہے وہ مومنین کی اٹھا دی جاتی. بعض علماء نے اس کی اس طریقے سے تفسیر کی ہے کہ انسان پورے مہینہ جب ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں پھر اس کو جو جزا ملتی ہے وہ شوال میں ملتی ہے، جس کا پہلا دن عید سعید فطر کا دن ہوتا ہے کہ جس میں انسان اللہ کی راہ میں انفاق بھی کرتا ہے. حکم ہے واجب انفاق کرنا ہوگا، یعنی فطرانے کے شکل میں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس ماہ میں ماہ رمضان کی جو آپ کی زحمتیں ہیں اس کا جزیہ بھی ملتا ہے. بعض علماء کرام نے اس طریقے سے اس کی تفسیر کی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ شوال کا خود جو معنی ہے وہ ہے اٹھانے کے معنی میں ہے، یعنی گویا کہ وہ گناہیں جو مومنین کے گردن پہ ہیں اس ماہ میں اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ گناہیں یعنی بخش دیے جاتے ہیں. تو ماہ شوال جو ہے اس عنوان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جب انسان مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کو جب اس کا جزیہ ملتا ہے، جس دن ظاہر ہے کہ انسان مثلا 10 دن ہے 12 دن ہے اس اعتبار سے انسان مزدوری کرتا ہے، ایک دن اس کے جزا کا دن ہوتا ہے جو اس کو اسی وجہ سے روز قیامت کو روز جزا بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سالہا اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو گناہ انجام دیتا ہے، جزا اس کو قیامت میں دی جاتی ہے. وزیر علی مشہدی صاحب جیکب آباد سندھ سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولا علی علیہ السلام مدد. جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز ماہ شوال میں کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. مولا کی خدمت میں حسب معمول سلام عرض کیجئے، کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجئے اور انشاءاللہ جی بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا اولاد الحسین. السلام علیکہ یا اصحاب الحسین. السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم ابا فضل العباس. السلام علیکہ یا جناب علی اکبر جناب علی اصغر علیہ السلام. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا میرے مولا اے کریم کربلا نواب کربلا سردار کربلا میرے مولا میرے آقا آپ کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں اور اس عنوان سے کہ میرے مولا میرے بڑے بھائی محترم جناب آقا مہدی بلالی کا انتقال ہو گیا ہے، 4 دن ہو گئے ہیں، اور مولا آپ کی بارگاہ میں اس کی سیاد کے لیے اس کے درجات کی بلندی کے لیے تمام مومنین ہمارے ساتھ بیٹھے دعا کر رہے بما جملہ موجب دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین فانی دنیا سے کوچ کر کے گئے ان تمام مرحومین مومنین مومنات کے مولا درجات بلند فرما. مولا کو واسطہ ہے مولا آپ کو جناب علی اکبر کی جوانی کا، مولا تمام ان دوستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، نوجوانوں کو مولا جو برسر روزگار نہیں ہے روزگار کے لیے پریشان ہے مولا ان کے رزق روزی میں وسعت اور کامرانی عطا فرما. مولا اس وقت ہم کوٹیا کے شہر میں بیٹھے ہیں اپنے بگ بردر کے گھر میں، ہمارے تمام بزرگان تمام دوستان جتنے بیٹھے ہیں سادات غیر سادات سب کی طرف سے مولا آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور مولا یہ دعا ہے کہ مولا آپ کو واسطہ ہے مولا سید سجاد امام زین العابدین کا تمام مومنین مومنات کی دعائیں مستجاب فرمائیے اور بالخصوص میرے بھائی کے بیٹوں کو خصوص محمد و آل محمد کے سلیمان سندر یاسر مولا ان تمام بچوں کو اپنے امان میں رکھے مولا انہیں کوئی غم نہ دے غم میں شبیر کے سوا مولا ان کے خانوادہ کے اوپر غیبی دست شفقت عنایت فرمائیے. میرے مولا جو ہمارے آگا بیٹھے ہوئے ہیں آغا جہانگیر اور تمام دوستان یہ آپ کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں اور مولا اسد اللہ صاحب تمام دوستوں ازہر خان مولا کن کن کے نام لیں تمام دوستوں کے سلام قبول کیجئے اور مولا ہمیں جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کیجئے. بالخود آغا صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آغا مہدی گلالی کے لیے دعا منگوائیے کہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے. تمام دنیا بھر میں ہماری جو آواز سنی جا رہی ہے مہربانی کر کے اور حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کے دور کے لیے ایک بابا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی اپنے دوستوں میں جو ہے وہ شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ آپ جیسے معزز شخصیات یہاں پر مزید بھی رونق افروز ہو سکے. اور جہاں تک بات ہے گل علی صاحب مرحوم و مغفور
वज़ीर अली मशहदी साहब के दोस्त फ़ौत हो चुके हैं। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फ़रमाए, उनके तमाम गुनाहों को बख्श दे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अहलुल बैत के नौकरों के साथ अल्लाह उसको महशूर फ़रमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जी बिल्कुल ऐसी ही है, यकीनन मोमिनीन जब भी बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब या और भी बहुत सारे मोमिनीन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के नाज़रीन है इसी तरीके से फरमाते हैं, कोई बीमार हो या कोई, ज़ाहिर है इस दुनिया से इंसान ने जाना भी है लेकिन उसकी मग़फ़िरत की दुआ ये मोमिनीन के ऊपर वाजिब है कि वो उनके मग़फ़िरत की दुआ करें। अलबत्ता दुआ इस तरीके से हो, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई शख्स जब फौत हो जाता है लोग जो है वो तान की वजह से, यानी उसका जिसको कहा जाए ना ताना जिसको देना होता है ना, उस तरीके से वो दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह ने ऐसी दुआ से मना किया है। सहाबा में से कोई एक शख्स था जो गुनहगार था, कोई गुनाह हो किया करते थे और सारे असहाब उसके गुनाह से वाकिफ़ थे, तो कुछ शरीर मिजाज मुनाफिकीन वहाँ मौजूद थे और वो बड़ी बुलंद आवाज़ से कहते थे अल्लाह मग़फ़रत करे, अल्लाह मग़फ़रत करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने उनको मना फरमाया कि ये बदबख्ती है इस किस्म की, आप जो है ऐसी दुआ जो लोगों के इंसल्ट का बायस बने ऐसी दुआएं नहीं करते, बल्कि दुआ ऐसी हो कि एक उमूमी दुआ इंसान करे। उमूमी दुआ ये है कि इंसान करे अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और बिलअख़स जो मरहूम व मग़फ़ूर है जो दुनिया से जा चुके हैं, इस तरीके से दुआ करें। ये बेहतर दुआ है। इंसान मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करे, नज़र व नियाज़ करें और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि खुदा न खास्ता कोई इंसल्ट वगैरह उसमें ना हो कि लोगों को मसलन एक गुनाह का अंदाज़ा हो जाता है। और बहरहाल मज़ीद में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि जिस पर जो है वो मासूमीन ने इस किस्म के हालात में मना फरमाया है। बहरहाल ये एक तरीके से बात है। और जहाँ तक बात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की, तो माशाल्लाह तमाम मोमिनीन अपने एतबार से कोमक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जहाँ तक है इस्तिआनत कर रहे हैं। करम हुसैन साहब है कराची से, माशाल्लाह फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो करम भाई आपको करबला मोहल्ला में माशाल्लाह आपकी आवाज़ गूंज रही है और सबसे पहले तो आपको इस लाइव प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ गो है। इस वक्त आपकी आवाज़ माशाल्लाह करबला मोहल्ला में है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए, फिर मैं एक मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। जी अगर समात फरमा सकते हैं तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी करम साहब सलाम अर्ज करें मौला की खिदमत में, बिस्मिल्लाह। अगर कोई दुआ भी करना चाहे कर लीजिए, यकीनन कबूलियत के लम्हात है। बिस्मिल्लाह। जी गालिबन हमारे करम भाई इनके जो है वो इंटरनेट का इशू है। बहरहाल अगर राब्ता हो सके तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर, वगरना दुआ गो तो है ही हम यहाँ पे। और बहरहाल इंसान नेक नियति जब कर लेता है, हदीस में ये वारिद है कि उसके लिए अजर लिख दिया जाता है। यानी अगर कोई शख्स किसी नेकी का इरादा कर लेता है, मिसाल के तौर पे घर से इस नीयत से निकला कि मैं गरीबों के साथ मदद करूँगा और ऐसा कुछ बना कि बहरहाल वो नहीं कर सका वो मदद, अल्लाह नेकी लिख देता है। अल्लाह इस कदर मेहरबान है और इस कदर अल्लाह की जो है अपने बंदों के ऊपर मेहरबानियाँ हैं। तो इस एतबार से बहरहाल अगर इंसान नीयत कर लेता है तो अल्लाह उसकी जज़ा लिख देता है, ये मुसल्लमात में से है। बहरहाल ज़ियारत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ रब्त, देखें बहुत सारे मोमिनीन किराम इसके ज़रिए से रब्ता करते हैं। जी करम हुसैन साहब हैं माशाल्लाह कराची से, दोबारा रब्ता कायम है। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी करम भाई इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप मौला को सलाम कीजिए और उसके बाद जो है आपसे मैं गुजारिश करूँगा।
जी जी, नेट का मसला है गालिबन, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक शख्स जो है अगर नेक नियति के साथ कॉल कर लेता है तो ये भी बहुत है। इंशाअल्लाह ये हमारा प्रोग्राम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे और हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 10:30 बजे और यहाँ मकामी टाइम यानी करबला मुअल्ला के टाइम के मुताबिक 8 बजे ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ माह शवाल में आपके लिए ये टेलीकास्ट किया जा रहा है और तमाम मोमिनीन भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास अमेरिका से इस वक्त कॉल पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर माशाल्लाह आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आपकी आवाज़ सरज़मीन करबला में है। सलाम अर्ज़ करें अपने मौला की खिदमत में और दुआ कीजिए और इंशाअल्लाह कबूलियत के लम्हात हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइका व अनाहत बिरहलिका अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बकीतु व बकिय लैलु व नहारु व जअलल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिका। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलामु अलैका या बीमार करबला, अस्सलामु अलैका या फख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फरज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुन लिवलीका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत वली व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इलाही बाक़ी मौला हुसैन, इलाही बाक़ी बाबुल हवाइज वमी ज़माना ज़हूर पे ताजिल फरमा। इलाही बाक़ी बाबुल हवाइज, इलाही बाक़ी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा हम सब पे रहम करम फरमा। इलाही बाक़ी मौला हुसैन, इलाही बाक़ी बाबुल हवाइज, इलाही बाक़ी बीमारी माम हम सबको बीमारियाँ दूर फरमा। इलाही बाक़ी मौला हुसैन, इलाही बाक़ी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हम सारे मरहूमीन के मग़फ़िरत नसीब फरमा, दरजात बुलंद फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारे भी सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से महफूज फरमा। इलाही बाक़ी मौला हुसैन, इलाही बाक़ी बाबुल हवाइज जल्द से जल्द बुलाए, करबला बुलाए, अपना दर्द दिखाए, मौला ज़वार बना दे, हमारा नाम भी लिख दे, बच्चों के साथ बुलाए मौला, ये सारी मुश्किलात ख़त्म कर दे मौला। इलाही बाक़ी मौला हुसैन बाबुल हवाइज मेरे भाई को लंबी उम्र अता फरमा, कामयाबी के साथ, सेहत के साथ, और दोनों मौलाना साहब भाइयों को मेरे कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मकबूल फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके हमारे नंबर्स को भी दीगर मोमिनीन तक इंतकाल देते रहें ताकि इंशाअल्लाह वो भी कॉल कर सके। सलामत रहें आप, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। शुक्रिया आपका। जी माशाल्लाह यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से कॉल फरमा रही थी, और तमाम मोमिनीन किराम जो इस वक्त हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं और किसी भी गांव में है, देहात में है, शहर में है, जहाँ कहीं पर भी है, वहाँ तक जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप अपना प्रोग्राम समझें और इसमें कॉल करें। और अगर आप साहिब हैसियत है, साहिब हैसियत से मुराद यानी इंसान जो, अगर आपके पास इस कदर वो है इनकम है कि आप किसी हद तक जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की
مدد کر سکتے ہیں تو اس کار خیر سے قطعاً روگردانی نہ فرمائیں، ضرور بضرور کال کریں اور اپنے امام کی خدمت میں سب سے پہلے تو سلام پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونیشن بھی کریں۔ عارف زیدی صاحب کراچی سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عارف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز شہر کراچی سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ سلام کریں اپنے مولا کی خدمت میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں۔ جی اگر کوئی دعا جی کوئی دعا کرنا چاہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کی طرف سے یا تو زیارت پڑھ لیتا ہوں، اگر آپ خود سے مولا کو سلام کرنا چاہیں تو بھی کر لیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگر کوئی دعا کرنا چاہیں عارف صاحب بسم اللہ فرمائیں، یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہے اس سرزمین پہ۔ آپ کی توجہ ہے سر ہماری طرف یا اپنا ذرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سلام عرض کریں، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، تھینک یو۔ سلامت رہیں، اللہ آپ کو۔ اچھا اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نظر کرتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ ارادہ فرمائیں گے؟ ارادہ کر لیں۔ السلام علیکم عبداللہ حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نظر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی نظر کا ارادہ کریں گے جب انشاءاللہ پھر ہو جائے۔ جی آواز غالباً شاید ہماری طرف توجہ نہیں فرما رہی یا نیٹ کا مسئلہ ہے۔ میں گزارش یہی ہے کہ کوشش کیا کریں کہ کسی ایسی جگہ سے کال کریں، یقین نیٹ کے مسائل زیادہ ہیں آج کل، تو اس اعتبار سے ماشاءاللہ جو مومنین کرام اور ہمارے محترم ناظرین جو اس پروگرام میں کال کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً دعا گو ہے۔ اور میں اس حوالے سے عرض کروں کہ راہ دور سے، یعنی اگر انسان شہر مقدس کربلا سے دور ہے، نہیں پہنچ سکتا، اس تک جو ہے وہ رسائی ممکن نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ۔ ظاہر ہے اس دور میں تو زیادہ مشکلات ہو گئے ہیں، ٹکٹ ہے، پاسپورٹ ہے، آپ کی جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہے اور ویزا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہے پورا ایک مرحلہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے عزو کا سفر بھی ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے، چونکہ ہوٹلز کا خرچہ ہے اور دیگر آج کے دور میں جو سٹینڈرڈ کی زندگی ہے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ زیادہ تو انسانیت کو اس سٹینڈرڈ کی زندگی نے برباد کر دیا، یعنی اگر انسان نہ کرے تو وہ کر نہیں سکتا، لوگ ہنسیں گے، اگر انسان کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا، اس اعتبار سے کہ خرچے بہت زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص شہر مقدس کربلا تک نہیں پہنچ سکتا، روایات بہت سارے ہیں، مجھ سے پہلے قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا اور اس پر بات کی، لیکن چونکہ ہمارے اسکرپٹ میں جو آج کی حدیث لکھی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اسی عنوان سے ابن ابی عمیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا، اپنے شیعوں کے لیے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا رستہ دور ہو، یعنی آپ کربلا سے جو ہے وہ دور ہے، ایسے کسی علاقے میں ہے کہ آپ دور ہے کربلا سے، اور اس کے گھر سے ہماری قبروں تک فاصلہ زیادہ ہو، یعنی روضات اہل البیت علیہم السلام تک فاصلہ زیادہ ہے، آپ بعد سفر میں ہے، یعنی دور ہے، بس مثال کے طور پہ کربلا سے دور ہے یا دیگر زیارات سے آپ دور ہے، تو امام نے ایک فارمولہ بتا دیا۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ زیارت کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، بلکہ کیا کرنا ہے، آپ نے زیارت کرنی ہے۔ کس طریقے سے کرنی ہے؟ تو کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، کسی ایسی جگہ پہ انسان، بعض روایات میں جو ہے وہ گھر کے چھت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان گھر کے چھت پہ چلا جائے، یا تنہائی میں چلا جائے، یا کسی صحرا کی طرف چلا جائے، کسی خلوت میں چلا جائے فی ای حال،
اور وہاں پر جو ہے سب سے پہلے تو زیارت کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے قبور کی طرف یعنی حرم جو کربلا کی طرف اگر انسان زیارت کرنا چاہے تو کربلا کی طرف متوجہ ہو کے زیارت کریں، 2 رکعت نماز زیارت کی پڑھیں. اس شخص کو جو ہے وہ زیارت کا ثواب ملے گا، یعنی یہ ظاہر بن چکا ہے، راہ دور سے یہ ظاہر بن چکا ہے. معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مثال کے طور پہ کربلا تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ راہ دور سے متوجہ ہو جائے. دیکھیں توجہ جو ہے وہ ضروری ہے، انسان جو ہے متوجہ ہو جائے، توسل کا رستہ اختیار کرے اور 2 رکعت نماز باقاعدہ پڑھے اور زیارت پڑھے. مثال کے طور پہ زیارت بھی انسان پڑھ سکتا ہے، زیارت امین اللہ پڑھ لیجئے، زیارت اگر کربلا کی زیارت عاشورہ پڑھ لی یا زیارت جامع کبیرہ پڑھ لے. انسان توجہ کر کے نا اس کی طرف جس امام کی طرف ہے وہ پڑھے. اور بالخصوص اس میں جو ہے سید شہداء علیہ السلام زیادہ تر اس قسم کے روایات موجود ہیں. شائق علی آغانی لاڑکانہ سندھ سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے. سلام عرض کرے مولا کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. مشکل حیدر کلا شیخ خدا علیہ السلام، مولا کا امیر امام حسن علیہ السلام، مولا کا سکی امام حسین علیہ السلام، مولا کا مولا امام زین العابدین علیہ السلام، مولا کا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا کا مولا امام موسیٰ رضا علیہ السلام، مولا کا مولا امام نقی علیہ السلام، مولا کا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا کا حسن، مولا کا امام زمان، مولا امام مہدی آخر زمان، مولا کا سخی امام حسین. تو سخی ہے، تو کریم ہے مولا. مولا عباس تو مشکل کشا ہے مولا، مجھے بھی زواج نصیب فرما دے مولا. مولا جو مومن مولا پریشان ہیں، بے روزگار ہیں مولا، ہمارا ملک پاکستان میں کوتاحت کر، محبت قائم دائم کر مولا. مولا تو کریم ہے یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے یا اللہ. تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب یا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مشکل حیدر کا شیر خدا کا تجھے واسطہ ہے مولا. تجھے واسطہ ہے آقا ثانوی خاتون فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے مولا. تجھے واسطہ ہے مولا امیر امام حسن کا واسطہ، مولا کا سخی امام حسین کے صدقے مولا. میں بے روزگار ہوں، پریشان ہوں، تکلیفوں میں مولا، روز عطا فرما مولا. تو انسان رباب کے خالی جھولی کا واسطہ ہے مولا. میں بے اولاد ہوں مولا، میں جھولی آباد کر مولا. مولا مشکل کشا اختان خاتون جن فاطمہ زہرا، تجھے واسطہ اپنے بچے مولا عباس مشکل کشا کا تجھے واسطہ ہے مولا. مجھے جھولی آباد کر مولا. یا رسول اللہ تجھے مولا امیر امام حسن مولا سخی امام حسن کے صدقے مولا، اقاسان خاتون جن فاطمہ زہرا مولا. میں بے اولاد ہوں مولا، میں بے اولاد ہوں، میری جھولی خالی ہے مولا. میں نرینہ اولاد عطا فرما، بیٹی کو اولاد عطا فرما. جو مومن مولا بے اولاد ہے مولا، اس کو اولاد عطا فرما مولا. جو بیمار ہے مولا کا سجاد کے بیماری کا واسطہ تکلیف میں دور فرما مولا. ہمارا آگانے گاؤں میں کوتر محبت قائم دائم کر. ہماری دارگاہ فیملی میں جو بے روزگار ہیں، پریشان تکلیفوں میں مولا دور فرما مولا. ہمارے بھائی بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، روزگار عطا فرما. ہمارے وارث مولا امام زمان جلد دور فرما. جو مومن مولا تکلیف مشکلوں میں ہیں مولا، تکلیف دور فرما مولا. مولا ہمارے کوتاحت کا محبت قائم دائم کر، بھائیوں میں کوتاحت محبت قائم دائم کر. ہمارے ماں باپ جنت فردوس علاقہ عطا فرما. جو ہمارے عزیز اقارب فوت ہو چکے ہیں مولا، اس کے تکلیف دور فرما، اس کے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا. تو کریم ہے مولا عباس مشکل کشا. تجھے آقا رسان بی بی زینب کے بچوں کا واسطہ میری جھولی آباد کر مولا. مولا سخی امام حسین مولا سکیم تجھے مولا علی جوان کا واسطہ ہے. تجھے آقا معصوم سکینہ کے سینے کا سونے کا واسطہ ہے مولا. رائب کو ساتھ بیٹے دے، مجھے بھی جھولی آباد کر مولا. میں بے اولاد ہوں، نرینہ اولاد فرما مولا. الہی آمین.
इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए। अच्छा, एक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं। इस प्रोग्राम में मोमिनीन नियत करते हैं नज़र की, जब नज़र कबूल हो जाए फिर देते हैं, तो आप भी मेरे ख्याल में नियत कर लीजिएगा और नियत कर ले कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह आपको फर्जंदान नेक व सालेह दे दे, फर्जंद नरीना दे दे, बाबुल हवाइज मौला आलिस करके नज़र करता हूँ मैं इंशाअल्लाह। नियत आपने कर लिया माशाअल्लाह। अब ये भी बता दीजिएगा कि किसी एक मासूम के साथ भी उसको निस्बत दे दीजिएगा। बाबुल हवाइज के साथ आप निस्बत देना चाहते हैं नजर को? और बेशक जी बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको एक तो फर्जंदान नेक व सालेह अता फरमाए, आपके रिस्क और रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, और जो भी आपकी दुआएं हैं मौला कबूल मकबूल फरमाए। कॉल करते रहिए, अपने मौला से जो है वो दुआओं का सिलसिला जारी रखे। मौला आपको सलामत रखे, शुक्रगुजार है आपके, सलामत रहें आप। और हमारे नंबर्स को दीगर मोमिनीन के साथ भी शेयर करें, दूसरे मोमिनीन को भी दे नंबर्स, ताकि इंशाल्लाह वो भी कॉल कर सके। शुक्रिया आपका जी। माशाल्लाह अच्छी बात है कि इंसान जो है वो नज़र की नियत करें। देखें मसला ये है कि इंसान जो है बहुत सारी इंसान की जो है वो दुआएं होती है, उसमें से कुछ दुआएं होती है मुहिम, जो बहुत ज़्यादा मुहिम है। उस दुआओं के लिए इंसान देखें, जब इंसान कोई दुआ करना चाहे, दुआ के भी आदाब है, यानी बाकायदा किताब मफातीह में भी शेख अब्बास क़ुमी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह व दीगर कुतुब में भी कुछ आदाब बताए गए हैं ना। जब दुआ इंसान करता है तो उसके कुछ आदाब है। उसमें इंसान को मसलन कुछ जगहों पर ऐसा भी मिलता है कि कोई ऐसी दुआ है, सब पहले सदका दे दें, सदका दे दें, यानी वो सदका भी एक तरीके से आप जो है वो इन्फाक में शुमार होता है। सदका दे दें, या बाज़ रिवायात में 3 दिन रोज़ा रखे इंसान, और खालिसतन नियत के साथ आप हज़ारात अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो दुआ पेश कर दे। यकीनन अहलुल बैत अलैहिस्सलाम बाबुल्लाह है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन यहाँ से ही ये सिलसिला चलता है। अलबत्ता ऐसा नहीं है, मासूमीन को ख़ुद जो है ये इख्तियार हासिल है कि वो दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इंसान खालिसतन वो करें, दुआ करें, और दुआ में शर्म भी न किया करें, बार बार करें दुआ, अल्लाह से बार बार दुआ किया करें। अगर आप इसरार रखें दुआओं पर, ऐसा नहीं है कि इंसान मायूस हो जाए और वो छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है दुआओं का सिलसिला जारी रखें। अगर कोई दुआ आपकी कबूल नहीं होती तो उसकी काफ़ी वजूहात हो सकते हैं, या वो आपके लिए बेहतरी नहीं है उसमें, या हो सकता है कि आपका ईमान ख़तरे में पड़ता हो, उसके ज़रिए से कबूल नहीं हो रही हो, या दीगर कोई मसलहत हो सकती है, या उसके ज़रिए से जो दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर ली है, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो इंसान को दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जहन में रखिए कि अगर वो दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह उसके बदले में आपको जो है उससे बेहतर चीज़ आपके लिए बेहतरी होगी उसमें, यानी अगर, लेकिन ख़ुद इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि दुआ को बार बार इंसान जो है वो अल्लाह की बारगाह में उसके ऊपर जो है वो बार बार उसका तकरार करता रहे, चूँकि अल्लाह चाहता है कि हम दुआ करें। रिवायात में नजमुल हसन भट्टी साहब माशाल्लाह मुल्तान से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, आप हमारे स्पॉन्सर भी है और इस वक्त आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस से करबला में है। सलाम अर्ज़ करें मौला की खिदमत में, अगर कोई दुआ भी करना चाहें। बिस्मिल्लाह। सलाम इमाम हुसैन बारा इमाम 14 मासूमीन पर, और सलाम जो भी बैनुल हरमीन में शोहदा हैं सबको मेरे में बहुत मोहम्मद आले मोहम्मद सच्चे के वास्ते कि जो भी हमारे जायज हैं वो सारी हाजात हैं वो पूरी कर दे मौला। मुश्किल कुशा जो बीमार हैं, जिनकी नौकरी नहीं लगी, और जो भी हैं मेरे भाई इर्तज़ा हसन, उसके दोनों बेटे, खुदा अल्लाह ताला को नौकरी अता फरमाए, मेरी हमशुदा सब पूरा ख़ानदान बहुत मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ते हमारे सब जायज़ है। और मेरे अल्लाह मैं मौला मुश्किल कुशा बहुत मोहम्मद आले मोहम्मद सदके मुझे यह तो काम लाता फरमाया। मिल तो रही है उनके ये उन हाजा उनकी दुआ से बहुत मैं खुश हूँ कि बहुत ही मैं ज़रा बेहतर हुआ हूँ।
اور میں ان کا شکر گزار ہوں، مولا کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ مولا نے اس غلام کو وہ پسند کیا ہے اور ماشاءاللہ انتقام عطا فرمائی ہے۔ بات کہ محمد علی محمد کے صدقے کے واسطے بس یہی دعا ہے، اور یہ ہے کہ مولا آپ ہمیں کربلا کی زیادہ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بالکل ماشاءاللہ، اللہ آپ کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے مزید بھی، اور آپ چونکہ ماشاءاللہ ہمارے اسپانسر بھی ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے نمبر کو شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکے۔ شکر گزار ہے آپ، سلامت رہیں آپ، بڑی مہربانی، شکریہ جی، ماشاءاللہ شکریہ بھائی جان، سلامت رہیں جی۔ نجم الحسن بٹی صاحب تھے ملتان سے، اور جتنے بھی مومنین کرام بہرحال اس پروگرام کی وساطت سے اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور مولا کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، دیکھیں یہ عظیم سعادت ہے، اور یقیناً انسان کا دل جو ہے وہ راغب ہے اہل البیت علیہم السلام کی طرف، تو اللہ نے جا کے ان کو جو ہے یہ توفیق دی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور اہل البیت علیہم السلام سے توسل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر نہیں ہیں تو بہت سارے غافل کوئی دنیا میں کم ہے۔ آپ نے خود دیکھے ہیں کہ کس قدر لوگ جو ہے وہ غافل ہیں، یعنی دنیاوی امور میں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ واقعاً چونکہ آج کل کے اس دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں زیادہ اس قسم کی عجیب چیزیں جو ہے وہ لوگ شیئر کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہراً اس کی جو شکل و شمائل ہے وہ مذہبی ہے، دینی ہے، یعنی اچھی خاصی لمبی داڑھی اور ٹوپی اور بڑے مولویوں کی طرح ہے، لیکن حرکات اس قسم کے کرتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سے یہ شخص غافل ہے۔ ظاہر ہے کہ اب انسان کو جو ہے اس کے ظاہر سے ہی پہچانو گے نا۔ بعض لوگ بیوقوفانہ قسم کا وہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہر کو چھوڑو، ظاہر سے اندازہ نہیں ہوتا، نہیں ظاہر سے تو اندازہ ہوگا، یعنی ٹھیک ہے کچھ موارد ایسی بھی ہے جہاں سے ظاہر سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اگر ایک شخص ہے جو ظاہری اعتبار سے اس کے سارے حرکاتی شیطانوں والے ہیں تو اس کے اوپر آپ رحمانیت کا گمان رکھو گے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہی والی بات ہوگی کہ وہ ایک شخص ملا تو اس نے بہرحال حرام پیا ہوا تھا، تو کسی ایک شخص نے کہا کہ بھائی یہ تو حرام پی چکا ہے، اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو اس نے کہا اس نے سرکہ پیا ہے۔ جی، سیدہ فاطمہ علی صاحبہ لاہور سے اس وقت ہمارا نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اپنے مولا کی خدمت میں، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر دیجئے، بسم اللہ۔ جی سلام کریں آپ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کر دیے گا، ٹھیک ہے؟ جی بیٹا ضرور، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور دعا گو ہوں آپ کے لیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا مجھے شفا دے دے، میں بہت تکلیف میں ہوں اس وقت۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی بیٹا اللہ آپ کو شفاء کلی نصیب فرمائے، اور آپ کے والدین کے لیے بھی دعا گو ہے، اللہ ان کی بھی جو دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ وہ پوری کرتے مولا۔ الہی آمین، الہی میں آپ سب کو کربلا کی توفیق نصیب فرمائے، رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ بس ایک چیز ہے بیٹا، اگر جو اس پروگرام میں بہت سارے مومنین اپنی شفا کے لیے نظر کرتے ہیں، تو آپ بھی نظر کا ارادہ کر لیجئے، اور انشاءاللہ جب بھی آپ کو شفا ہو جائے پھر آپ جو ہے وہ نظر، تو انشاءاللہ آپ نظر کرنا چاہیں گے کسی چیز کا جتنا آپ کرنا چاہیں؟ جی جی آپ نظر کا ارادہ بیٹا کر لیں، جو نظر ہے وہ بہت سارے مومنین یہاں پر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کرنا چاہیں گے نظر؟ نہیں انکل، میں تو کرتی ہوں۔ اچھا اچھا، چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ لوگوں کو اپنے امان میں رکھے۔ آپ اس طریقے سے بھی ایک کام کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا نمبر ہے نا اس کو جو ہے دیگر مومنین کے ساتھ شیئر کیجئے، ٹھیک ہے؟
कम से कम 14-15 मोमिनीन के साथ सलामत रहे, शुक्रगुजार है, अल्लाह आप लोगों को अपने ज़मान में रखे, सलामत रहे आप। शुक्रिया शुक्रिया जी। असल में चूँकि जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा समझाना भी मुश्किल है और बस औकात नहीं समझते, तो ज़ाहिर है हम जो है वो यही अर्ज़ करना चाह रहे हैं कि आप नियत किया करें, उसके बाद जब अल्लाह वसाइल फ़राहम करेगा फिर आप कर लीजिएगा। अगर आप अपने हाल पे बाकी हैं तो किसी ने आपको मजबूर थोड़ी ना किया हुआ है, इसमें क्या है कोई, यानी इंसान एक चीज़ की, मैं मसलन इरादा करता हूँ अल्लाह मुझे अगर जो है वो साहिब इस्तिताअत बनाता है तो मैं नज़र कर लूँगा, इसमें मेरा क्या जाता है? अगर साहिब इस्तिताअत बना लिया तो मैं नज़र कर लूँगा, अगर नहीं है तो मेरे सर पे कोई गुनाह नहीं है, मेरे गर्दन पे कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल ये मुसल्लम है। तो इसमें मैं चूँकि बच्चों को थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता है और बच्चे होते हैं, लेकिन जो बड़े हैं जो सुन रहे हैं उनके लिए यही है कि आप इरादा कर लेते हैं जी अल्लाह मुझे साहिब इस्तिताअत कर दें तो मैं नज़र करूँगा। अच्छा, अगर आप साहिब इस्तिताअत हो जाते हैं तो फिर आप करें, अगर नहीं होते अपने हाल पे बाकी है, अल्लाह ने आपको किसी इम्तिहान में डाला हुआ है जिससे आप निकल ही नहीं रहे, तो आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। बस यही है, यही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि बस बाज़ दफ़ा जो है वो चूँकि नेट का भी मसला होता है और या बच्चा होता है सामने, तो उसको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मोमिनीन किराम जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं उनके लिए खुसूसी दुआ है, जिनकी जो भी शरई हाजात है मौला कबूल मकबूल फरमाए, और खुसूसन इस दौर में जो बड़ा पुरशोब दौर है, यकीन जानिए बड़ा पुरशोब दौर है, इस पुरशोब दौर में मोमिनीन के इज़्ज़त जान नामूस माल हर चीज़ के लिए दुआ गो है, अल्लाह हिफाजत फरमाए बेहक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बल्कि अपने वक्त के इमाम के साथ तवस्सुल करते हैं कि इस पुरशोब दौर में जहाँ पे हर चीज़ जो है उसका ख़तरा है, यकीनन ख़तरा है, और दुआ करते हैं कि हमारे वक्त के इमाम का पंजा और आपकी जो है दस्त शफ़क़त हमारी ऊपर हो, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस सख्त दौर से, इस सऊबतों से भरे हुए दौर से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईमान कामिल के साथ निकल जाए। ऐसा भी निकलना नहीं है कि इंसान जो है वो बेईमान हो जाए, मसलन ईमान ना हो इंसान में, ईमान के साथ इंसान निकल सके। और यकीनन हमारा हम सब जो है वो मुंतज़रान हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। बेशक ठीक है हमारी गुनाहें हैं, बेशक हम लोग जो है वो उस मेयार में नहीं है कि जिस मेयार में हमें होना चाहिए था, ये कोई इसमें दो राह नहीं है कि हम लोग यानी ज़हूर के लिए आमादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल इस हवाले से दावेदार हैं। सैयदा इस्मत ज़हरा साहिबा कराची से हमारी नेक्स्ट कॉलर है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में गूंज रही है। सबसे पहले तो आप मौला को सलाम कीजिए, अगर कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लें। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बस यही दुआ है कि जल्द अज जल्द हालात बेहतर हों और जल्द अज जल्द मौला अपने दर पे हमें बुलाएं और हमारी पूरी परेशानियां दूर हो, और जो दुनिया में ये मुश्किलें चल रही हैं, और मौला हुसैन सलाम इसराइल को नीस्त तो नाबूद कर दे, अमेरिका और इसराइल को नीस्त तो नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मौला अब्बास इस इसराइल को गारत करें, इसका नामो निशान तक मिट जाए। हजरत इमाम साहिब ज़मान का जल्द अज जल्द ज़हूर हो, मौला हमें जल्द अज जल्द अपने दर पे बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस मौला के दर पे यही दुआ है हमारी। मौला आपको अपने ज़मान में रखे। और सिस्टर मैं एक अर्ज़ ये कर रहा था कि मोमिनीन इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ एक मुआविनत की हैसियत से नज़र करते हैं, तो आप भी इंशाल्लाह इस मुहिम में शामिल होना चाहेंगे नज़र करके? जी जरूर इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु, हस्ब तौफीक जितना भी आप कर सकें। अच्छा, शुहदाए करबला में से किसी का नाम ले लीजिए या इमामों में से किसी का नाम ले लीजिए ताकि निस्बत हो जाए और आपकी दिली दुआएं कबूल हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? आमीन। शहज़ादा अली अकबर माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए। और आपसे गुजारिश आखिरी ये है कि हमारे नंबर्स को दीगर मोमिनीन के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन। जज़ाकल्लाह।
सलामत रहें आप, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, शुक्रगुजार है। जी माशाल्लाह, बहरहाल हस्ब तौफीक मोमिनीन किराम मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोमिनीन जो है वो मुकम्मल तौर पे हमें फरामोश कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि करते हैं और माशाल्लाह दिल खोल के भी करते हैं। बहुत सारे मोमिनीन को हम देखते हैं कि जो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से मोहब्बत करते हैं। सालहा इंसान को मोहब्बत हो जाती है अगर किसी एक शख्स के साथ आप सालहा रहते हैं, किसी चीज़ के साथ सालहा रहते हैं। मेरे पास पुराने एक कलम था मेरे पास, और वो वही कलम था जिसके अंदर एंक डालते हैं, यानी एंक वाला कलम था, स्याही वाला। तो आज के इस दौर में ज़ाहिर है कि जो पेन इस्तेमाल होते हैं, बॉल पेन इस्तेमाल होते हैं, ज़ाहिर है इससे बहुत ही आसानी के साथ वो होता है। लेकिन चूंकि काफ़ी अरसे से मैं उसको इस्तेमाल करता रहा, तो अभी भी वो मेरे पास मौजूद है और मैं, यानी मेरे लिए वो पेन जो है मोहब्बत है। तो इंसान को किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, जानवर से मोहब्बत हो जाती है, तो फिर अगर कोई ऐसा टेलीविज़न चैनल है जो आप रोज़ाना उसको देख रहे हैं, करबला से आपका राब्ता उसके ज़रिए से कायम है, तो फिर कैसे मोहब्बत नहीं होगी। तो मोमिनीन ने अपने मोहब्बतों का सबूत भी दिया है हमें, और माशाल्लाह उन्होंने डोनेशन भी की है, और इसके साथ साथ जहाँ तक वो मदद कर सकते थे, दीगर मोमिनीन तक पैगाम रसानी का सिलसिला हो या प्रोग्राम्स में जो है, जो बाज़ थोड़े से कुछ जानकारी थी उनके पास, उन्होंने शिरकत भी की है और अपनी तरफ से भी रज़ाकाराना तौर पे यहाँ पर गुफ्तगू भी की है। तो मेरे ख़्याल में मोमिनीन ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस प्लेटफॉर्म को अब मज़ीद वुसअत में जाना चाहिए, यानी मज़ीद वसी से वसी तर होना चाहिए। हकीकतन हक़ ये बनता है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है, और ज़ाहिर है प्रोफेशनल, आपके पास प्रोफेशनल स्टूडियोज़ है, आपके पास प्रोफेशनल कैमराज है, और आपके पास जो है वो एक ऐसे शहर में कि जो महंगा तरीन शहर है, वहाँ पर आप ये सब चीज़ जो है वो आप अफोर्ड कर रहे हैं। तो बिलाशुबा ऐसा ही होना चाहिए। हम तवक्को ये रखते हैं कि ये हमारा काम आलमी सतह पर जाए और पूरी दुनिया में जो है ये काम देखा जाए और लोग इसको सराहे इंशाल्लाह। जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की किस कदर मुरीद हैं, किस कदर, हत्ता शिया तो बहरहाल अपने है, वो तो इमाम मानते हैं, वो तो इमाम है, यानी हुज्जत खुदा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं दूसरे फ़िरक़ों में, जैसे अहले तसन्नुन हो गए, वो भी तो रसूलुल्लाह की वजह से और फ़र्जंद रसूलुल्लाह की हैसियत से कितनी मोहब्बत करते हैं। बल्कि ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का किरदार जो है वो अजीम किरदार है, और जो आपकी शहादत है, जालिम के ख़िलाफ़ आपका क़याम है, और उसके अलावा जो है जो लोगों को ज़िंदगी का एक तर्ज सिखाया गया। बल्कि एक बहुत बड़े धर्म गुरु थे, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़े धर्म गुरु थे जो गैर मुस्लिम थे। उससे किसी ने पूछा कि गुरुजी आप जो है हमारे गुरु हैं माशाल्लाह, और हम आपसे सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आपका भी कोई गुरु है जिससे आपने कुछ सीखा हो? तो उसने कहा कि मैंने वो करबला वाले से सीखा है, यानी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा था। यानी गैर मुस्लिम भी इस किस्म के अकवाल, अगर हज़ारों में मैं न भी कहूँ तो सैकड़ों में ये तादाद में ये मौजूद है कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को कम अज़ कम हर शरीफ ज़ादा, कोई दीन की वो नहीं है। मरहूम ख़तीब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम सैयद नसीम अब्बास रिज़वी साहब इस उन्वान से फरमाया करते थे कि शराफत ज़रूरी है, दीन की ज़रूरत नहीं होती सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए। सैयद समर अब्बास करबलाई मुजफ्फरगढ़ से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। माशाल्लाह, आपको सबसे पहले तो लाइव प्रोग्राम में जो करबला मोहल्ला से टेलीकास्ट किया जा रहा है, आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, और शुक्रिया। आप, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें, मौला हुसैन की खिदमत में, और अगर कोई दुआ भी करना चाहे फिर मैं एक मुख्तसर अर्ज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। तो इल्तिमास से दुआ ये है कि हमारे दोस्त हैं, फैमिली है, उनके लिए वो फोत हो गए हैं। मेहदी गुल आले के सलमान शाह जी के वालिद साहब हैं। जी दोस्त हैं हमारे सलमान शाह, उनके वालिद साहब हैं, उनके लिए इल्तिमास से दुआ करनी है। और ईरान की फतह के लिए पाक मखदूमा ईरान को फतह दे,
اور جتنے بھی مومنات ہیں، سنگت مات میں سنگت سفیر حسین ہے میری، اس کے لیے ہمارے مظفر گڑھ سے اور کارواں بھی کرتے ہیں، شکر الحمدللہ۔ ابھی 10 کو میری فلائٹ تھی کربلا کی، 10 رمضان کو، صحیح تو وہ فلائٹ مشہد کی تھی، وہ پھر کینسل ہو گئی کیونکہ 10 رمضان کو تو یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور خصوصی جو مرحوم ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ایک عرض آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے مومنین اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نظر کرتے ہیں، تو آپ بھی ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ جب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ معاونت کی حیثیت سے کریں گے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شہدائے کربلا میں کسی ایک ہستی کا نام لے لیجئے یا اماموں میں سے ایک ہستی کا نام لے لیجئے تاکہ آپ کی نظر جو ہے اس کی نسبت ہو جائے اور انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا دلی دعائیں قبول ہو سکے۔ کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ شہزادے پاک شہزادے علی اصغر۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو خوش رکھے اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ اور آپ سے ایک گزارش آخری بھی ہے، ماشاءاللہ آپ کی اچھی خاصی ایکٹیویٹیز ہے اور لوگوں کے ساتھ جان پہچان ہے، جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ کے طور پہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے نمبرز کو آپ شیئر کر لیجئے تاکہ انشاءاللہ آپ جیسے مہربان معزز اور باشرف شخصیات انشاءاللہ العزیز پروگرام میں مزید رونق افروز ہو سکے۔ آپ سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ، شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیں آپ۔ یہ کوئٹہ سے ہزارہ ٹاؤن سے ان کے لیے التماس دعا جن کے لیے محتاج دعا انشاءاللہ ضرور تمام مومنین کی طرف سے جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا، یقیناً نائب وزیار اور دعا گو ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، شکر گزار ہے، التماس دعا، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، سمر عباس صاحب تھے، کافی سارے ماشاءاللہ فعال انسان ہیں اور کافی سارے سرگرمیاں ہیں ماشاءاللہ دینی اعتبار سے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، مومن کو فعال رہنا چاہیے، مومن کو کونا نشین نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ رہبانیت کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے اگر ایک انسان ہے وہ کسی کے بارے میں کچھ وہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اللہ کی کچھ خاص اس کے اوپر عنایت ہو جو بیٹھے ہوئے، لیکن عمومی طور پہ مومنین جو ہے وہ فعال رہنا چاہیے، یعنی ہر کام میں کام رکھنا چاہیے، ایسا کام جو اس کے شائع نشان ہو، یعنی جو فعالیت ہے دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے تو اس اعتبار سے ضرور کریں، اور تمام مومنین جو ہے اس کو کرنا چاہیے، انٹرسٹ لینا چاہیے۔ اگر آپ تھکے تکارے ہیں ہر چیز میں، جی ہم تھکے تکارے ہیں، تو پھر یہ کام، پھر یہ ضرر ہے، نقصان میں بندہ چلا جائے گا۔ ایک تو یہ نہ کہا کرے انسان، ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو انسان واقعہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک نارمل چیزیں ہیں ایسا نہ کہا کرے جی ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ کے اندر آپ تو ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں کو تو زیادہ کرنا چاہیے، تو اپنی ایکٹیویٹیز رکھیں ماشاءاللہ، خصوصی دینی انٹرسٹ زیادہ رکھیں اور اسلام کی بات کریں، اور ہاں اسلام کی بات میں یعنی علماء کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ خود جانتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے نہ کریں۔ آپ دینی اعتبار سے یعنی دین کو اس طریقے سے کریں کہ جو متخصصین ہیں ان کو آگے کر کے بات کریں تاکہ دین کو پروموٹ کر سکے اچھے طریقے سے۔ تو یقین کرنا چاہیے، یقیناً انسان کو محنت کرنی چاہیے، انسان کو دین کے لیے، چونکہ زندگی مختصر ہے اور خصوصاً جو جوان طبقہ ہے ان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی آپ کی 40 سے آگے چلی جائے گی نا، پھر بندہ تھک جاتا ہے، اور جب آپ تھکیں گے نا پھر آپ بیٹھ جائیں گے، پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو انسان پھر ظاہر ہے پشیمانی جو ہے وہ انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش ہم کرتے۔ تو ابھی سے آپ کر لیں ارادہ۔ البتہ جو مومنین ہیں وہ بڑھاپے میں بھی جوان رہتے ہیں، بظاہر جو ہے سفید ریش، لیکن ماشاءاللہ ارادے جو ہے، جو ان کے تصمیمات ہیں، ان کی جو عزائم ہے اور جو وہ رکھتے ہیں نیت، وہ یقیناً ان کے جوان رہتے ہیں۔ لیکن میں کلی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سے پہلے کہ آپ کا جسم خدا نخواستہ ضعیف ہو جائے، تو بہت اچھا موقع ہے انسان سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کرے، اہل البیت کے ذکر کو بلند کرے، دین مصطفی کو بلند کرے، ہر شخص تک پہنچائے اور کفار تک پہنچائے، مخصوصاً جو اس طرف لوگ رہنے والے لوگ ہیں، امریکہ اور یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے آپ بتا دیں انشاءاللہ العزیز۔ جو شریف زادے ہیں وہ قبول کر لیں گے، جو شریف زادہ ہوگا وہ قبول کر لے گا، جو شریف زادہ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اور پھر بعد میں اس کے اوپر عمل جو ہے کس قدر عمل درآمد
آگے والا کرتا ہے وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے. بہرحال آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس تک اس بات کو پہنچا دیجیے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ جو ہے وہ بڑی برکت کرے گا. اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم آپ سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو کوشش کر رہا ہے اس میں آپ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور انشاءاللہ العزیز بعید نہیں ہے کہ کوئی کام ہونے والا نہ ہو. یقین جانیے کہ آپ کو اگر اللہ نے اس سٹیج پہ رکھا ہے نا, آپ قابل تھے تو رکھا ہے. اللہ خدائے حکیم نے اگر آپ کو اس منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے نا, آپ کے اندر اہلیت ہے تو کھڑا کر دیا ہے, وگرنہ اللہ ایسے کسی کو کھڑا نہیں کرتا. آپ اس پر یقین رکھیں. اگر یہ علم اس نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے نا دین کا, یقین جانے آپ اہل ہیں. ہاں اگر سستی کریں گے تو پھر نہیں ہوگا, لیکن آپ کو اگر کسی دینی جگہ پر آپ موجود ہیں تو اس وقت آپ یقیناً یہ کام کر سکتا ہے. اللہ نے آپ سے کام لینا ہے, اب آپ کی مرضی آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وگرنہ اللہ ظاہر ہے کہ کسی سے کام نہیں لینا ہے, وہ اس منزل تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. آپ جو پہنچے ہیں اس پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیے, اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیے. آپ کو اللہ نے یہ علم دے دیا ہے, اب آپ جو ہے اس کے رکھوالے ہیں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ہر جگہ پر آپ میرے جتنے بھی معزز ناظرین ہیں, آپ جہاں پر بھی موجود ہیں, آپ جہاں کہیں پر بھی ہے, آپ جس مقام پر ہے, آپ سے کام اللہ لینا چاہ رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے ضرور آپ اپنی فکر اور توجہ رکھیں. اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا یہ پروگرام پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق 10:30 بجے, کربلا مولا کے ٹائم کے مطابق رات 8 بجے روزانہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے انشاءاللہ العزیز ان ایام میں. اور انشاءاللہ العزیز آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور کوشش کرتے رہیے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے, اللہم عجل لولیک الفرج. آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے, امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے. ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے. یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے. اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں.